Good morning, students. Good morning. Good morning. Okay. So let's start our today's class. What we have completed yesterday? Yesterday हमने क्या फिनिश किया था, क्या कंप्लीट किया था? Moral development. Psychosexual development. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. कल हमने दो थियरी देखी थी. Just a minute. So let's do a quick revision. We have seen two theories. First theory was Moral development. moral development given by Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg. What is moral development? What is moral development? Online students, I'm asking something. What is moral development? You have not Moral studied development એ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોસેસ છે. એની અંદર સોસાયટીના શેપ્સ અને બિહેવિયર અને વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવાના હોય. Yes. हम जो पता है हमें जो पता है लाइक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग दैट इज मोरल्स. सो जो सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन वैल्यूज बनाई है वो एक्सेप्ट करना ही मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं. सो दिस इज अ मोरल डेवलपमेंट. वो सिक्वेंशियल प्रोसेस है. मोरल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में होगा फिर सेकंड स्टेज स्किप कर दिया देन थर्ड स्टेज में एंटर हो गए. इट इज नॉट पॉसिबल. एवरी स्टेज हैज टू बी कंप्लीटेड एंड सीक्वेंस में ही मोरल डेवलप होता है कोई भी पर्सन हो. सो हमने लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट देखे थे. कितने लेवल्स है? 3. Okay, so there are 3 levels. What is first level? Pre-conventional level. What is second? Conventional morality. And what is third? Post-conventional. Okay, just a minute. Let me see. Okay, so we have one new student, that is Sakshi Patel. Okay, Sakshi, we are doing revision of our previous class. हमने कल एक chapter complete किया था, उसका हम revision कर रहे हैं. After completion of revision, I will start the new chapter. So we are in the middle of all the chapters of growth and development. So if you feel any doubt in these chapters, you can ask me in between also. It might be possible that you feel something that you are not getting or कुछ भी हो आपको पता ना चले, so you can ask me. Okay? Okay, ma'am. Okay, so let's see the levels. In first level, there are how many stages? 2. No, not Three. 2. 3. 3 stages. Stage 0, stage 1 and stage 2. Basically, what happens in level 1? Level 1 में क्या होगा? पेरेंट्स ना मोरल पर ज बिलीव करे. हाँ, चाइल्ड की खुद के मोरल्स होंगे. चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. No. नो, चाइल्ड को पता नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है. इन्फेंट को कोई भी अवेयरनेस नहीं है. इन्फेंट को ऐसा भी नहीं पता है कि पनिशमेंट मिलेगी रिवॉर्ड मिलेगा. सो वो तो कुछ भी नहीं करेगा. सो इन्फेंट कम्स अंडर स्टेज 0. उसको तो कुछ भी पता ही नहीं है. स्टेज 1 में दैट इज 2 to 4 years में वो चाइल्ड पेरेंट्स के रूल्स क्यों फॉलो करता है? टू अवॉइड पनिशमेंट. टू अवॉइड पनिशमेंट. यस, उसको अभी भी पता नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. he or she is just only following the parents rule because he or she doesn't want to get punishment. उसको punishment नहीं चाहिए इसीलिए वो follow कर रहा है. बट उसको भी अभी भी still right and wrong नहीं पता है. उसमें stage 2 देखा था. stage 2 that is 4 to 7 years. वो child को भी पता है कि what is right and wrong. उसको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है. And when you are telling कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, तो वो confirm कब करेगा rules? Why he is following the rules? अभी उसको थोड़ी थोड़ी समझ आना स्टार्ट हो गया है. बट वो रूल्स क्यों फॉलो कर रहा है? गेटिंग रिवॉर्ड्स. हाँ, वो सिर्फ ऐसा ही बोलेगा. आस्क द चाइल्ड विल आस्क यू क्वेश्चन कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न, रिवॉर्ड में क्या होगा. सो
for this reason they are following the rules and regulations. So child has no own morals and values, उसकी own morals और values नहीं है. That is called as level 1 pre conventional morality. Then level 2 that is conventional morality. उसमें क्या होगा? लेवल 2 में क्या होगा? चाइल्ड ने खबर हશે what is wrong and what is right. हाँ, चाइल्ड को भी समझ आ गया है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट वो क्यों कर रहा है फॉलो? Please बाय द to चाइल्ड. others. यस. Please to others. यस, टू प्लीज अदर्स. दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के लिए वो करेगा. दे वांट टू बिकम अ गुड गर्ल एंड गुड बॉय. उनको अभी एक ही मोटिव है कि हमें गुड गर्ल बनना है, हमें गुड बॉय बनना है, दूसरों की नजरों में हमें अच्छा बनना है. दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग द रूल्स. पर अभी उनके खुद के मोरल्स होंगे. नहीं. उनको मोरल समझ आते हैं कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बट डू दे हैव देयर ओन मोरल्स? Maybe यस और नो? no. व्हाई मे बी? नो, दे डोंट हैव देयर ओन मोरल्स. वो किसके मोरल्स फॉलो करेंगे? जो सोसाइटी ने बनाया है, जो उनके पेरेंट्स के लिए. उनके पेरेंट्स को लगता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, तो उनके लिए भी दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग. उनके खुद के मोरल्स नहीं है, पेरेंट्स से अलग भी नहीं है. पेरेंट्स के लिए जो राइट है, जो गुड बिहेवियर है, उनके लिए भी वो राइट और वो ही गुड बिहेवियर होगा. सो उनके खुद के मोरल्स नहीं है, हाँ, बट उनको अभी समझ आ गया है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. सो उनको वो पता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है. सो ऑलवेज वो राइट करने का ही ट्राई करेंगे. व्हाई? दे आर ऑलवेज फॉलोइंग द गुड रूल्स एंड गुड थिंग्स बिकॉज दे वांट टू प्लीज अदर्स, और दूसरों के सामने उनको गुड गर्ल और गुड बॉय बनना है. दैट्स व्हाई. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. हाँ. फिर लेवल 3 है, दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. उसमें क्या था? उसमें क्या देखा था हमने? Own morals follow करશે. Society ना हाँ, moral भी deny करे. डिसोबे भी कर सकते हैं. यस. नाउ अब तक हमने देखा कि कन्वेंशनल में बच्चे को पता चल गया मोरल्स क्या होता है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. बट पोस्ट कन्वेंशनल में उसके मोरल्स और डेवलप हुए, उसके खुद के मोरल्स डेवलप हुए, ना कि सोसाइटी के और पेरेंट्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है कि ये गुड है ये बैड है, वो नहीं. अभी उसको खुद को भी पता चलता है कि हर पर्सन का अलग ओपिनियन होगा, हर पर्सन के अलग वैल्यूज होंगे, और उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, वो सोचेगा. अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग दैट इज बैड थिंग, बट द पर्सन थिंक्स कि दिस इज गुड थिंग, तो वो सोसाइटी के रूल्स को भी डिसोबे करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा. अभी वो खुद के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा. एंड वो रीजनिंग करेगा कि हाँ, अगर ये राइट है या रॉन्ग है. वो ऑलवेज क्यों राइट फॉलो करेगा? बिकॉज जो सेल्फ कॉन्डेमनेशन होता है, सेल्फ कॉन्डेमनेशन मीन्स उसको खुद पर गिल्टी होगा, खुद को वो पनिश करेगा कि यार आई हैव डन सो रॉन्ग एंड मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया. सो वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए वो ऑलवेज अच्छी चीज करेगा, सबके लिए जस्टिस करेगा और गुड फॉलो करेगा. बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके खुद के होंगे, ना कि सोसाइटी के और पेरेंट्स के. अंडरस्टूड? મેમ મને આ यस. સ્ટેજ 6 માં नहीं खबर पड़ती एग्जैक्टली. ओके. होल से 6 या 1 पॉइंट? होल स्टेज 6. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. मैं हर एक पॉइंट आपको फिर से समझाती हूँ. द स्टेज 6 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी. पोस्ट कन्वेंशनल में इतना तो पता चल गया ना आपको कि पर्सन के खुद के मोरल्स होंगे, ना कि सोसाइटी के या फिर पेरेंट्स के. अभी उसके खुद के मोरल्स डेवलप होंगे. अब तक क्या करता था कि पेरेंट्स ने जो रूल्स बनाए हैं, सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए, वो फॉलो करता था वो पर्सन. ना उसके खुद के रूल्स होंगे, बिलीव्स होंगी, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. सो conformity is based on the universal principles of justice and occurs to avoid self condemnation. वो क्यों कंफर्म करता है कि हाँ दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग? वो रूल्स पर कंफर्मेशन क्यों करेगा? बिकॉज उनको सबके साथ जस्टिस करना है. उनको ऐसा लगता है कि मैं मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, मुझे सबके साथ न्याय से पेश आना है. सो द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, उसके बेसिस पर वो सारे रूल्स कंफर्म करेगा. टू अवॉइड द सेल्फ कंडेमनेशन. सेल्फ कंडेमनेशन मीन्स मैंने अभी समझाया. व्हाट इज दैट? सेल्फ कंडेमनेशन मीन्स खुद पर गुस्सा करे कि मैं खुद को क्या करे. हाँ, यस.
खुद की सेल्फ को पनिश करना, खुद को गिल्टी फील करवाना कि मैंने गलत किया, वो चीज अवॉइड करने के लिए वो ऑलवेज रूल्स फॉलो करेगा, अच्छे रूल्स फॉलो करेगा, नॉट बैड रूल्स। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल। इस स्टेज में क्या करेगा पर्सन, उसके खुद के एथिकल प्रिंसिपल्स, उसके लिए जो राइट है, उसके लिए जो रॉन्ग है, उसने खुद ने जो बनाया है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, वो ही वो पर्सन फॉलो करेगा। The development of post-conventional level of morality occurs in the adolescent about 13 years of age, marked by the development of individual conscience and defined set of moral values. ये जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज है वो कब डेवलप होता है, जब इंडिविजुअल 13 इयर्स का हो जाएगा तब उसके खुद के मोरल्स होंगे। बिफोर 13 वो कन्वेंशनल मोरालिटी तक ही आएगा, तब तक उसके खुद के मोरल्स नहीं होते। टिल 12 इयर्स वो चाइल्ड अभी भी पेरेंट्स के ही रूल्स फॉलो करेगा, पेरेंट्स जो बोलेंगे वो ही करेगा। उसे अभी पता नहीं है कि इट इज पॉसिबल कि पेरेंट्स के रूल्स ओल्ड है सो ये रॉन्ग होगा, ऐसा उसको अभी पता नहीं चल रहा है। जब वो 13 इयर्स का हो जाएगा तभी उसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी डेवलप्ड होगी। और कैसे पता चलेगा कि अभी वो उसके पोस्ट कन्वेंशनल मोरल डेवलप्ड हो गए, सो इट इज मार्क्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ एन ओन इंडिविजुअल कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स खुद की इनर सेल्फ। आपको कैसे पता कि ये चाइल्ड की पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप हो गई है, बिकॉज उसको अभी उसकी खुद की इनर सेल्फ पता है, उसके खुद के मोरल वैल्यूज है अभी उसके पास। इसकी वजह से आपको पता चला कि हाँ, नाउ द इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड द पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उसके खुद के मोरल्स अभी आ गए हैं। The adolescent can now acknowledge a conflict between two socially accepted standards and try to decide between them. अभी जो adolescent है, जो अभी 13 प्लस हो गया है, now वो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ऐसी सिचुएशन कि क्या करे, दुविधा में हो गया है वो, डायलेमा जैसा। सो अभी उसको सोसाइटी ने बोला है कि ये दोनों अच्छी चीज है, उसमें से वो डिसाइड करेगा कि दोनों तो अच्छी नहीं हो सकती, तो क्या ज्यादा बेटर रहेगा। टू डिसाइड जो सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, दो स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने दिए उसमें से बेस्ट क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, वो अभी खुद वो एक्नॉलेज कर सकता है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, डायलेमा हो जाएगा कि इन दोनों में से क्या चीज अच्छी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, बट दोनों में से अच्छा क्या है वो खुद से वो डिसाइड करेगा, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। Control of conduct is now internal in standards observed and in reasoning about right and wrong. अभी उसको खुद पर कंट्रोल है, इंटरनल स्टैंडर्ड्स है, उसके खुद के स्टैंडर्ड्स है कि वो रीजन दे सकता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्यों ये राइट है क्यों ये रॉन्ग है। नाउ उसके खुद के कंट्रोल्स है, उसके खुद के इनर मोटिव्स, इनर स्टैंडर्ड्स, मोरल वैल्यूज। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Other Thank you. persons, any doubt in this levels? મેમ Yes. તો પછી એનો મતલબ કે જે પોસ્ટ કન્વેન્શનલ મોરાલિટી ચેપ્ટર 13 જ ડેવલપ થઈ કહેવાય ને. हाँ, आफ्टर 13, और 13 का जब हो जाएगा चाइल्ड तब उसमें पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज 10 to 12 इयर्स तो वो कन्वेंशनल स्टेज में ही है। आफ्टर 13 इयर्स लेवल 3 में आएगा, एट द 13 इयर्स 12 के बाद, और ये स्टेजेस में से वो पता होगा। अंडरस्टूड? Yes. ओके। ओके, फिर हमने कौन सी थियरी देखी थी? Psycho. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। यस, अभी उसने जो थियरी दी थी साइकोसेक्सुअल थियरी, उसमें कंपोनेंट्स थे। कितने कंपोनेंट्स थे? 4. यस, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ये थियरी में 4 चीजें हमें स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके वो एक कंप्लीट थियरी होगी। सो कौन से 4 कंपोनेंट्स थे? First, the level of awareness. लेवल ऑफ अवेयरनेस, देन Id, ego, super ego. ईड, ईगो, सुपर ईगो, वो सब क्या है? Agencies एजेंसीज ऑफ of माइंड, mind. Of mind. जो हमारी पर्सनालिटी कंट्रोल करती है। देन Concept of anxiety and defense mechanism. yes, concept of anxiety and defense mechanism, and last is Psychosexual stage of development. yes, हमने स्टेजेस देखे थे।
So these are the four components of the psychosexual development theory given by Sigmund Freud. So first the level of awareness. Level of awareness में कितने levels थे? ठीक है। 3. 3 levels. कौन से? Unconscious, preconscious and conscious. Yes, unconscious level, preconscious level and conscious level. What do you understand by unconscious level? आपको एग्जाम में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, आपको सिर्फ समझना है कि अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है। अवेयर नहीं है। हाँ, एक तो खुद वो अवेयर नहीं होगा, बट कैसी चीज से, किससे, क्या अवेयर नहीं होगा, ब्रीफ थोड़ा डिटेल में। जो अनप्लीजेंट फीलिंग है उसको रिप्रेस करती है, जानबूझ के वो रिप्रेस करेगा, अनकॉन्शियस। सप्रेस करेगा नहीं, तो એ recall જ નહીં કરી શકે. वो हाँ, अनकॉन्शियसली होगा। वो अनकॉन्शियसली होगा। कोई कोई चाइल्ड है जिसको बचपन में उसके साथ कुछ हुआ है, कोई बैड एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, मेमोरीज कुछ हुआ है, बट उसने जानबूझकर वो सारे जो मेमोरीज थे उसने दबाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली वो सब रिप्रेस हो गई है। और अब उसको पूछोगे कि ऐसा कुछ याद है तुम्हें ये सब, तो वो उसको याद ही नहीं होगा, उसे लगेगा कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, बिकॉज वो अनकॉन्शियसली सब उसको रिप्रेस हो गया है, अनकॉन्शियस ब्रेन में चला गया है, वो रिकॉल भी अभी नहीं कर सकता। और अगर शायद वो गलती से भी रिकॉल हो जाए, आप उसको प्री मेच्योरली, जल्दी, टाइम से पहले उसको कॉन्शियस स्टेट में ला दो, उसको याद करवा दो, तो उससे एंजाइटी हो सकती है चाइल्ड को। सो दैट इज द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस, जो चाइल्ड के अवेयरनेस के बाहर अनकॉन्शियस स्टेट में सारी मेमोरीज, थॉट्स, और बेसिकली ये बैड थॉट्स ही होते हैं, बैड मेमोरीज ही होती है जो अच्छी नहीं है उसके लिए। अगर अच्छी होती तो उसको एंजाइटी नहीं होती। सो ऐसा सब वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, वो सब रिप्रेस हो जाएगा अनकॉन्शियसली। अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो बेटी, व्हाट इज प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस? उसमें क्या होगा? इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स से બધું ઇન્વોલ્વ થશે। हाँ, फिर वो, recall કરી શકે પણ हाँ, immediate नहीं કરી શકે. ક્રિએટ નહીં કરી हाँ, શકે। उसको याद है बचपन की कुछ चीजें या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस, उसको याद है, उसने सब रिप्रेस किया हुआ है। जब उसको पूछोगे तब वो बोलेगा भी सही, आपको भी पता होगा उसमें गुड बैड दोनों मेमोरीज होगी। आपको अभी कुछ बचपन की चीजें पूछो तो आपको याद है, थोड़ा बहुत पर याद है। इमीडिएटली अब कुछ चीजें याद नहीं आएगी, बट यू हैव टू फोकस और उसको प्रेशर दे के याद करना पड़ेगा। सो वो रिकॉल किया जा सकता है, बट नॉट इमीडिएटली, बट it can be recalled because वो प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस में था। देन थर्ड इज कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस, उनमें उसमें क्या था? કે રિયાલિટી પ્રિન્સિપલ વર્ક કરે। दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। और easily remember કરી શકે immediately. हाँ, इमीडिएटली वो रिमेम्बर कर पाएगा, कुछ भी एक्सपीरियंसेस है, आइडियाज है, थॉट्स है, कुछ भी है, आप पूछोगे तुरंत वो आंसर दे देगा, वो इमीडिएटली आ गया आंसर। क्यों? बिकॉज वो सारी चीजें उसके कॉन्शियस लेवल में है, रियलिटी बेस पर वर्क करती है, उसके ब्रेन में स्टोर्ड है, वो अंदर दब नहीं गई है, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं चली गई, अभी भी कॉन्शियस माइंड में ही है। अंडरस्टूड? यस। देन एजेंसीज ऑफ माइंड हमने देखा था, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। व्हाट इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? New students, those who are new, Miss Shakshi and okay, only one new student. So whenever you see this red point, that is so important for your NCLEX. तो जहां पर भी आपको red point दिखे वो आपके लिए बहुत important है. You have to remember this point anyhow. Understood? Yes, ma'am. Okay. So what is that? What is red important point? Online students, what is this point? It is in front of you. आप देख के भी बोल सकते हो।
ઈડ ઈગો અને સુપર ઈગો એ ત્રણેય ડિફરન્ટ પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે અને ત્રણેય સાથે કામ કરે છે. यस, तीनों डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती है और तीनों एक साथ एज अ टीम वर्क करेगी टू बिल्ड अवर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी। और उसमें भी लीडर कौन है? ईड ईगो और सुपर ईगो में लीडर कौन है? ઈગो. ईगो। ईगो ईड एंड सुपर ईगो को दोनों को कंबाइन करके वर्क करता है। द ईगो इज द लीडर, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ फर्स्ट इज ईड। व्हाट इज ईड? એ પ્લેઝર પ્રિન્સિપલ વર્ક કરે છે. इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। और Immediate reaction without thinking consequences. हाँ, जब भी कोई पर्सन इमीडिएट रिएक्ट कर लेता है विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, सो उसका मतलब कि ईड इज वर्किंग, वो ईड के बेसिस पर वर्क कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्या होगा, क्या बस कुछ भी हुआ तो वो टेंशन जो भी हुआ उसको रिड्यूस करने के लिए वो इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा। सो दैट इज ईड। नाउ व्हाट इज ईगो? reality principle, Yes, it works on reality principle। Then problem solving, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट कैसे, क्या होगा? नाउ द पर्सन Thinking React કરતા કરશે પહેલા think કરશે. हाँ, अभी वो सोचेगा एक पल के लिए, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर देगा। एक पल के लिए सोचेगा कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगी, ऐसे बिहेव करूंगा तो क्या होगा। नाउ द पर्सन स्टार्ट्स टू थिंक कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो दैट इज ईगो। एंड व्हाट इज सुपर ईगो? morality principle work કરે. हाँ, वो वर्क करता है मोरलिटी प्रिंसिपल पर। सो फिर Action React. કર્યા પછી વિચારશે કે મેં right કર્યું કે wrong કર્યું. yes, the person will think कि whether I have done this right or wrong। अगर wrong किया होगा तो क्या होगा? Guilt. गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मोरल वैल्यू ब्रेक हो जाएगी। अगर राइट है तो पेशेंट और पर्सन विल गेट सेटिस्फाइड। सो दिस इज सुपर ईगो। देन एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म देखा था हमने, द थर्ड कंपोनेंट। उसमें क्या था, क्या स्टडी किया था? जी वो છે એ मतलब यस। Anxiety સામે fight કરતા as a defense mechanism. हाँ, आप ईगो में क्या होता था, पर्सन सोचता था कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा। अभी उसने कुछ कर लिया तो उसका ईगो क्या करेगा, वो जब उसको कुछ एंजाइटी हुई, सो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, वो बहुत सारे हमने देखे थे कि डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो यूज करता है पर्सन टू सेटिस्फाई द ईगो। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म एवरी पर्सन यूज करेगा कि उसकी एंजाइटी कम हो। पर डिफेंस मैकेनिज्म कोई पर्सन यूज करता है तो उसे पता होता है कि उसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया? No. नो। तो वो कैसे ऑपरेट होता है? Unconscious. अनकॉन्शियसली, उसकी अवेयरनेस में नहीं होता, उसको आइडिया भी नहीं होता कि उसने क्या किया, क्या बोला। तो डिफेंस मैकेनिज्म हैज ऑलरेडी ऑपरेटेड, बट वो उससे अवेयर नहीं होगा। सिर्फ एक ही डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि जो पर्सन खुद से अवेयर स्टेट में करता है, जानबूझकर करता है। व्हाट इज दैट? Suppression. सप्रेशन। कुछ सप्रेशन मीन्स कुछ उसके साथ बुरा हुआ है। रिप्रेशन मीन्स अनकॉन्शियसली वो धीरे धीरे चला जाएगा। बट सप्रेशन मीन्स जानबूझकर वो बुलाने का ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसका ब्रेकअप हुआ है या फिर उसको कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो बुला नहीं जा रहा है बट वो जानबूझ के बुलाने का ट्राई कर रहा है, तो दैट इज सप्रेसिंग। फिर डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, जो भी जिस लाइफ जो थ्रेटनिंग चीज है जिससे उसकी एंजाइटी बढ़ती है उसको डिनाई करेगा, फॉल्सिफाई करेगा एंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करेगा। तो इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो ऐसा बोल सके कि आई एम नॉट यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, पर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा, सो उससे उसको प्रॉब्लम होगा। वो अच्छे से दूसरों के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा, हर चीज में वो डिनाई करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा, और उसका पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होगा। फिर हमने स्टेजेस देखे थे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो उसमें कौन से स्टेज थे? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज? Oral state. ओरल स्टेज। व्हाट इज द एज ग्रुप? Birth to बर्थ टू 1 ईयर। उसमें क्या होगा?
मतलब चाइल्ड से ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हाँ, फिर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पर होता है और ईड प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब पेशेंट को जो चाहिए मतलब चाहिए इंस्टेंटली, उसको तो इंस्टेंटली, वो जो चाइल्ड है वो, उसको भूख लगी है या फिर उसको कुछ भी हुआ है तो ट्राई करना स्टार्ट कर देगा एनी हाउ। आपको उसको पहले उसको प्रायोरिटी देनी होगी, इमीडिएटली उसको अटेंशन देना होगा, उसकी नीड फुलफिल करनी होगी। जैसे उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी उसको ग्रेटिफिकेशन होगा, मतलब अच्छा लगेगा। सो दैट इज ओरल स्टेज। नेक्स्ट हमने देखा एनल स्टेज। सेकेंड स्टेज इज एनल स्टेज। व्हाट इज द एज ग्रुप? 1 to 3 1 to 3 years। उसमें क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर Toilet training. हाँ, इट इज बेस्ड ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग। जब भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग दोगे इस पीरियड में, सो बच्चे को क्या होगा? પ્લેઝર ફીલ કરશે प्लेजर फील होगा। क्यों? કે એની બોડી કંટ્રોલ કરી શકે છે એટલા માટે। हाँ, उसको अच्छा लग रहा है कि वो अभी खुद की नीड्स बॉडी कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इमीडिएट उसको रिएक्ट करना पड़ता था, अभी उसको पता है कि हाँ द चाइल्ड कैन कंट्रोल, और उसको ऐसा लगेगा कि वो अभी उसको सब अकम्प्लिश हो गया है, कि सब पूरा हो गया, नाउ द चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट। और अब उसमें ईगो आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि चाइल्ड को भूख लगेगी तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। द चाइल्ड कैन नाउ वेट फॉर सम टाइम। सो दैट इज एनल स्टेज। थर्ड स्टेज इज ફેલિક Phallic સ્ટેજ Phallic stage. फैलिक स्टेज। उसमें क्या है? व्हाट इज द एज ग्रुप फर्स्ट? 3 to 6 years. 3 to 6 years, yes। और Child इसमें क्या होगा? experience. pleasurable Conflict જેનાઇટલ feeling. ઓર્ગન ઘડી ઘડી ટચ કરશે। हाँ, इस फैलिक स्टेज में चाइल्ड इज मोर क्यूरियस अबाउट द जेनिटल ऑर्गन्स, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से फ्रिक्वेंटली जेनिटल ऑर्गन्स टच करेगा, एंड देयर इज अ फैंटेसी लाइफ। क्या कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जनरली फैलिक ઓડિપસ स्टेज? કોમ્પ્લેક્સ Oedipus. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट? ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हाँ, जो मेल चाइल्ड है उसके लिए फेवरेट पेरेंट कौन होगा? फीमेल मम्मा मदर, मदर यस। एंड जो फीमेल चाइल्ड है उसके लिए फेवरेट पेरेंट कौन होगा? father। फादर। सो दैट इज द ऑपोजिट जेंडर सेक्स अट्रैक्शन होगा, बट धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे कंटिन्यू रहेगा, बट स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब चाइल्ड फैलिक स्टेज में एंटर होता है, एंड धीरे धीरे व्हेन द चाइल्ड मूव्स टुवर्ड्स 6 years ऑफ एज, धीरे धीरे उसका वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व नाउ। देन नेक्स्ट स्टेज इज latency Stage. latency stage. What is the age group? 6 to 12 years. 6 to 12 years। इसमें क्या होगा? सेक्सुअल अर्ज टेपर થઈ જાય हाँ, जो फैलिक स्टेज में जो चाइल्ड को क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द जेनिटल ऑर्गन्स, एंड जो भी उसका क्यूरियस स्टेट था, सेक्सुअल अर्जिस थी, वो सारी अब सबसाइड हो जाएगी। सो अभी किस पर ज्यादा फोकस होगा उसका? કલ્ચર એન્ડ સોશિયલ કોમ્યુનિકેશન એલિવેટ થશે। हाँ, सो कल्चरली एक्सेप्टेड वो इंटेलेक्चुअल परसिप्स अभी उसको कुछ ग्रो करने में, इंटेलेक्चुअली ग्रोथ में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, सोशल कम्युनिकेशंस में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। So this is all comes under latency stage. Next is genital stage, genital stage. That is age group 12 years। 12 years and 12 above. years and beyond, more than 12। उसमें क्या होगा? जेनिटल ऑर्गन Organ mature. onset of puberty। Yes, onset of puberty होगा, puberty स्टार्ट हो जाएगा और जेनिटल ऑर्गन्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पर्सन को क्या फील होगा? gratification from ग्रेटिफिकेशन फील होगा, बिकॉज उसकी ओन बॉडी में कुछ अच्छे चेंजेस आए, उसको वो देखकर ही अच्छा फील होगा। एंड इस स्टेज में जो पर्सन होगा वो क्या करने का ट्राई करेगा? दे विल डेवलप रिलेशनशिप यस हेल्दी और सेटिस्फाइंग सेक्सुअल और इमोशनल रिलेशनशिप्स वो डेवलप करेगा दूसरे लोगों के साथ, और उसके लाइफ के गोल्स सेट कर से हाँ गोल्स होंगे, गोल्स प्लान करेगा वो कि मुझे ये करना है, ये करना है। a strong sense of personal identity। now the person know कि क्या उसकी पहचान क्या है, वो what he or she wants with
his or her life, उसको क्या करना है वो सब उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा इन द जेनिटल स्टेज. अंडरस्टूड? Yes. Okay, any doubt in this? No, no. Okay, so what you have to do, I hope कि आपने सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे टेक्स्ट बुक के. आपको नोट्स बनानी है, चारों थियरी ऐसे लिखनी है कि फर्स्ट थियरी वाज, which was the first theory? Psychosocial. Psychosocial. Social theory given by Eric. Eric Erikson. Eric Erikson. Second theory, Cognitive. Cognitive Cognitive development. development. cognitive theory given by Jean Jean Piaget. Jean Piaget. Piaget. John Piaget. Okay, third theory, Moral Moral development. moral development given by Lawrence Lawrence Kohlberg. Kohlberg. Lawrence Kohlberg. And last theory, Psychosocial. Psychosocial development. psychosexual theory Sexual. given by Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. ओके, सो आपको क्या करना है, जो साइकोसोशियल एरिक्सन की थियरी थी उसके 8 स्टेज थे, 8 स्टेज ऐसे लिस्ट आउट करने हैं. एंड उसकी आपको जो क्राइसिस थे वो लिख देने, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या करना है, क्या इस एज ग्रुप का चाइल्ड हो तो कैसे मैनेज करोगे. कॉग्निटिव जो थियरी थी उसमें आपने देखा था कि देयर वर 4 स्टेजेस, सेंसरी, मोटर, देन Pre-operational. ऑपरेशनल. यस, सो जो ऐसे स्टेजेस थे वो लिखने हैं और उसमें आपको ओन लैंग्वेज में सिर्फ एक पॉइंट में लिखना है कि उसमें क्या था. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट में वो सेंसेस और मोमेंट का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करता था, सेकंड में प्री लॉजिकल थिंकिंग, थर्ड में लॉजिकल थिंकिंग, एंड फोर्थ में उसकी लॉजिकल थिंकिंग एक्सपांड हो गई. आप जो भी समझे ऐसे आपको नोट्स बनानी है. मोरल डेवलपमेंटल थियरी में आपको मेनली 3 लेवल्स याद रखने हैं और एज ग्रुप याद रखनी है कि लेवल 1 में दोनों स्टेजेस कंबाइन करके कहाँ तक एज ग्रुप थी. Oh dear. Birth to 7. 7 years. बर्थ से लेके 7 इयर्स तक पूरी लेवल 1 में थी. सो आपको इतना याद रखना है कि जो स्टेज 0 तो इन्फेंट के लिए था, बट 1 था उसमें पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए वो पर्सन करता है और सेकंड में रिवॉर्ड के लिए. सो आपको उतना याद रखना है कि चाइल्ड के मोरल्स नहीं थे, वो पेरेंट्स के रूल्स फॉलो करता था, बट क्यों करता था उसका आपको रैशनल पता है. सेकेंड लेवल आप बोलोगे कि कन्वेंशनल, उसमें आप लेकर लिखोगे कि 7 से लेके 12 तक कंप्लीटली ओवरऑल आ गया. उसमें चाइल्ड को अभी पता चल गया है कि व्हाट आर द मोरल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बट वो क्यों फॉलो करता है, टू प्लीज अदर्स, टू बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल. लास्ट लेवल आपको पता है. सो दिस इज हाउ आपको अपने ओन लैंग्वेज में नोट्स बनानी है. साइकोसेक्सुअल जो थियरी है जो दी है, सो आपको सारे स्टेजेस लिखने हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज. सो स्टेज लिखने हैं, उसकी एज ग्रुप लिखनी है और उसमें आपने जो समझा 1 या 2 पॉइंट में लिखना है. सो ऐसे आप नोट्स बनाओगे तो जब आप रीडिंग करने के लिए बैठोगे एग्जाम के लिए, सो आप सिर्फ इतना रीड करोगे, सो आपको पूरा चैप्टर एक ही पेज में समराइज होके याद रह जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. मेक श्योर NCLEX इज नॉट गोइंग टू आस्क यू द थियोरिटिकल पोर्शन. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. वो आपको ऑलवेज ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, सो आपको ये चैप्टर की नोट्स बनानी होगी, otherwise it is difficult to remember each and every stage of different theories. Okay, so let's start a new chapter. So let's start chapter 19. What is the page number, online students, for this? 244. 41. So new student, Miss Sakshi, you can open page number 244 for this chapter. Got it? मिल गया आपको? हाँ मैम. Okay. So let's start the new chapter, that is chapter 19. Growth, development and stages of life.
चैप्टर 18 में हमने थियोरीज देखी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही स्टडी करेंगे एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हम स्टडी करेंगे। The priority concepts in this chapter is development and family dynamics. Development के लिए है chapter, so development is also our priority in family dynamics. Family dynamics means family का क्या रोल है, family कैसे function करती है एक साथ में for the development and growth. So वो that is the priority concept. So let's start with first the hospitalized infant and toddler. सो हमें इसमें सारे एज ग्रुप है। नाउ द नॉर्मल एज ग्रुप, इन्फेंसी पीरियड इज फॉर, इन्फेंसी पीरियड कहां से होगा, व्हाट इज द एज ग्रुप, व्हाट इज द एज, birth, 1 month to 1 year, 1 year, एंड टॉडलर के लिए 1 year to 1 year to 3 year। सो अभी जो नॉर्मल हमने आगे जो थियरी देखी थी उसमें एज ग्रुप्स अलग थे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, दो इट इज डिफरेंट बट स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ ये सब चैप्टर्स में नॉर्मल जो आइडियल जो एज है फॉर इन्फेंट एंड टॉडलर्स वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो हम सारे एज ग्रुप्स देखेंगे कि इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग, एडोलेसेंट, जब भी ये लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, सो क्या होता है, उनकी कैसे केयर करनी है, वो हमें स्टडी करना है। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट दैट इज इन हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट एंड टॉडलर। अगर कोई इन्फेंट हॉस्पिटल एडमिट हुआ है या टॉडलर एडमिट हुआ है, सो क्या होता है। सो फर्स्ट सेपरेशन एंजाइटी होगा। व्हाट इज सेपरेशन एंजाइटी, व्हाट इज सेपरेशन, हाँ चाइल्ड से पेरेंट्स सेपरेट થશે એટલે यस, सेपरेशन पेरेंट से दूर होने की वजह से उसको एंजाइटी होगी, वो पेरेंट से दूर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है कहीं पे भी आपके नेबरहुड में या फिर आपका कजिन कोई भी हो, सब जैसे उसको लेने जाओगे उसकी मदर से, आप खिलाने के लिए भी लेने जाते हो, लाइक उसके साथ खेलने के लिए, तब भी वो आपके साथ नहीं आएगा। दे डोंट वांट टू गेट फार फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सो सेपरेशन एंजाइटी होगी, ऑब्वियसली दे आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो वो क्या करेंगे, 3 फेजेस में से पसार होंगे ड्यू टू द सेपरेशन एंजाइटी। फर्स्ट तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करना मतलब उसके अगेंस्ट जाएंगे, वो कुछ भी करके एनी हाउ वो सेपरेशन एंजाइटी को रिलीव करने के लिए पहले तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, सो दे विल क्राई, दे विल स्क्रीम एंड दे विल सर्च फॉर द पेरेंट्स। तो क्राइंग होगा, स्क्रीमिंग होगा, दे विल सर्च फॉर द पेरेंट्स। अवॉइडेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट विथ स्ट्रेंजर्स, कोई स्ट्रेंजर उनके पास भी जाएगा तो उनको ऐसे अवॉइड करेगा, रिजेक्ट करेगा, कोई भी स्ट्रेंजर के साथ वो जाएगा भी नहीं। सो this is how they will protest, they will show their protest that they are anxious by the separation from the parents। verbal attack करेगा others पर कि ऐसे जाओ मेरे से दूर रहो, ऐसे verbal attacks करेगा child। physical fight करेगा, like kicking करेगा, sometimes bite भी कर लेगा child, hitting, pinching ऐसा कुछ भी करेगा, physical fight करेगा, physical attack भी कर सकता है। so this is the protest। second होगा despair। what is despair, समानता। डिस्पेयर में मीन्स वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है उससे, जो भी है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसने प्रोटेस्ट किया नाउ अभी वो थक गया। तो सेकंड फेज इज डिस्पेयर, उसमें वो विड्रॉ कर लेगा खुद को, डिप्रेस हो जाएगा एंड अनइंटरेस्टेड इन द एनवायरमेंट। अभी वो फाइट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस अभी वो एकदम ऐसे एनवायरमेंट से विड्रॉ कर लेगा, अकेला ही बैठा रहेगा, डिप्रेस हो जाएगा और उसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा एनवायरमेंट में। लॉस ऑफ न्यूली लर्न स्किल्स, जो नए स्किल्स सीखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट था 1 मंथ से 1 ईयर तक था, तो उसने अभी अभी ऐसे नीज से उसने चलना सीखा था, क्रॉल करना सीखा था, तो शायद वो भूल जाए ड्यू टू दिस, ऐसे सेपरेशन एंजाइटी हुई है, उतना स्ट्रेस हुआ है, तो उसकी वजह से वो सारे नए स्किल्स उसने सीखे थे वो भी भूल जाएगा। और अगर टॉडलर है जिसने टॉयलेट ट्रेनिंग ले ली थी, तो अभी वो भी भूल गया कि मुझे कैसे करना था, ड्यू टू दिस स्ट्रेस उसने जो भी नए स्किल्स सीखे थे वो भूल जाएगा चाइल्ड। थर्ड फेज इज डिटैचमेंट, अभी डिटैचमेंट होना स्टार्ट होगा, बट डिटैचमेंट अब कभी भी देखा है कि पेरेंट्स से हॉस्पिटल में सेपरेट होने की वजह से डिटैच हो जाता है चाइल्ड पेरेंट्स से, इट इज नॉट वेरी कॉमन इन दिस एज ग्रुप्स। so detachment is uncommon and occurs only after lengthy separation from the parents। normally कोई भी infant and toddler 2-3 दिन पेरेंट्स से दूर रहने में
डिटेच नहीं हो जाता। हाँ, वो कब डिटेच होता है, बहुत लेंदी सेपरेशन हो, कि ऐसा कुछ हुआ हो कि टॉडलर को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रख के पेरेंट्स को जाना पड़ा बहुत टाइम तक, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ऐसा चाइल्ड होगा वो डिटेच हो जाएगा पेरेंट्स से इजीली। बट इतने कम टाइम के लिए वो डिटेच नहीं होगा। इट इज सो अनकॉमन इन दिस एज ग्रुप। Superficially, the toddler appears to have adjusted to the loss. Superficially कैसा होगा, टॉडलर ऐसे बिहेव करेगा कि हाँ, अभी जो लॉस हुआ है, पेरेंट्स से दूर होना पड़ा है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो लॉस से एडजस्ट हो गया है, वैसे ऊपर ऊपर से वो दिखावा करेगा। डीप डाउन स्टिल ही वांट हिज पेरेंट्स। तो डीप डाउन तो अंदर अभी उसको लॉस की फीलिंग है, बट सुपरफिशियली ऐसा लगेगा कि उसने एडजस्ट कर लिया है। During the detachment phase, the toddler again becomes more interested in the environment, plays with others, and seems to form new relationships. This behavior is a form of resignation and not the sign of contentment. Okay, अभी डिटैचमेंट फेज होता है, पहले उसने प्रोटेस्ट किया, फिर वो दुखी भी हो गया, अभी डिटैचमेंट फेज आया। तो डिटैचमेंट फेज में वो पेरेंट्स से एक्चुअली में डिटैच नहीं हो जाता है, पर ये फेज में क्या होता है, अभी टॉडलर को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है आजू बाजू के एनवायरमेंट में। वो दूसरों के साथ खेलेंगे, घुल मिल जाएंगे, नए रिलेशनशिप बनाएंगे नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ रेजिग्नेशन एंड नॉट अ साइन ऑफ कंटेनमेंट। उसने अभी हार मान ली है, उसको पता है कि अभी कुछ नहीं होगा, आई विल नॉट गेट माई पेरेंट्स बैक, अभी उसको उससे कुछ होने वाला नहीं है। दैट्स वाई उसने खुद से मतलब रिजाइन कर दिया कि अभी करके कुछ भी फायदा नहीं है, मुझे अभी ऐसे ही रहना है। उसने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है। दैट्स वाई ये बिहेवियर चेंज होने को देखने को मिला है। नॉट अ साइन ऑफ कंटेंटमेंट मीन्स वो चाहता नहीं है कि ऐसा हो, बट उसको जबरदस्ती उसने ऐसे हार मान ली है कि ना अब अभी कुछ भी हो नहीं सकता है, दिस इज द सिचुएशन, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए उसके एनवायरमेंट के साथ वो घुलना मिलना स्टार्ट हुआ। अंडरस्टूड व्हाट द सी पॉइंट इज सेइंग टू यू? Yes, ma'am. Next, the toddler detaches from the parent in an effort to escape the emotional pain of desiring the parent's presence. वो टॉडलर पेरेंट से क्यों डिटैच होता है, बिकॉज उसको पता है कि वो कितना भी क्राई करेगा, कितना भी ऐसे डिमांड करेगा पेरेंट्स के लिए, बट वो नहीं मिलेगी उसको, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो वो जो इमोशनल पेन होता है उनको याद कर करके, सो वो उससे बचने के लिए वो टॉडलर सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ना वो पेरेंट्स को याद नहीं कर रहा है, बट डीप डाउन उसको स्टिल उनकी कमी फील हो रही है। ड्यूरिंग द डिटैचमेंट फेज द टॉडलर कोप्स बाय फॉर्मिंग shallow relationships with others, becoming increasingly self-centered and attaching primary importance to the material objects. Yes, डिटैचमेंट फेज में, ये फेज में क्या होगा, वो दूसरों के साथ रिलेशन तो बनेगा, बट उतने डीप अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, शैलो रिलेशन होंगे दूसरों के साथ। अभी वो सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंट्रिक है, खुद पर ही फोकस ज्यादा है, और मटेरियल ऑब्जेक्ट से उसको अटैचमेंट ज्यादा होगी, उसको चीजें ज्यादा पसंद है, उसको पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको टॉयज या कोई भी चीजें है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, प्राइमरी इंपॉर्टेंस उससे अटैच ज्यादा हो जाएगा। Detachment is the most serious phase because reversal of the potential adverse effects is likely to occur once detachment is established. Yes, डिटेचमेंट है वो बहुत सीरियस फेज है। हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म डिटेचमेंट हो जाएगा तो कंप्लीट डिटेचमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म से सेपरेट हो तो। सो अगर ऐसा हुआ, बहुत लाइक लॉन्ग टर्म से डिटैच होना पड़ा, सो एडवर्स इफेक्ट्स जो है, अभी उसका अच्छा कनेक्शन नहीं है, सो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बार अगर डिटैच हो गया चाइल्ड तो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई डिटैचमेंट इज अ सीरियस फेज। In most situations, the temporary separation imposed by hospitalization does not cause such prolonged parental absence, and the toddlers enters into detachment. Normally, hospital में जब admit होता है तो इतना prolonged separation नहीं होता कि toddler detach ही हो जाए completely parents से, but
ऐसा होगा नहीं, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि टॉडलर को या इन्फेंट को बहुत टाइम से पेरेंट्स से सेपरेट होना पड़ेगा, सो वो डिटेच हो सकता है। एंड एक बार वो अगर डिटेच हो गया, सो उसको रिवर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, सो फर्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी, जो भी इन्फेंट और टॉडलर एडमिटेड है, so उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी, और उसमें वो पहले प्रोटेस्ट करेगा। देयर विल बी अ प्रोटेस्ट फेज, डिस्पेयर फेज एंड डिटैचमेंट फेज। नाउ द टॉडलर एंड इन्फेंट हैज अ फियर ऑफ इंजरी और पेन। उसको हॉस्पिटल में है तो उसको उतना तो डर लगेगा ना कि इंजरी को और पेन का। सो वो क्यों लगता है? व्हाई द टॉडलर हैज अ फियर ऑफ इंजरी एंड पेन? It is affected by the previous experiences, separation from the parents and preparation for the experiences. कभी ऐसा हुआ हो कि टॉडलर को और इन्फेंट को पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट किया हो? इन्फेंट को तो इतना पता नहीं चलेगा, बट टॉडलर है, उसको एडमिट किया है, सो उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस बैड रहा होगा, उसको इंजेक्शन से कुछ हुआ होगा, सो इस बार भी उसको डर लगेगा। सो द फियर एंड पेन का जो मतलब इंजरी एंड पेन का जो फियर है, वो किस पर अफेक्ट करता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस पर। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो इस बार इंजरी एंड पेन का फियर वो कम होगा, और प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हुआ होगा तो अभी उसको फियर ज्यादा होगा। फिर सेपरेशन ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से भी देयर विल बी इंक्रीज फियर एंड प्रिपरेशन फॉर द एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस के लिए वो उसको प्रिपरेशन करोगे, प्रिपेयर करोगे, सो उसको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे ऐसे इंजेक्शन दे देंगे, क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि चाइल्ड जब हॉस्पिटल में आता है तब वो काम डाउन होता है, जैसे आप सब उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो वो बहुत फियरफुल हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे गेट अ फियर ऑफ इंजरी एंड पेन। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। उनका मतलब कंट्रोल भी लॉस हो जाता है। इन व्हाट टर्म्स? लेट्स स्टडी। So hospitalization with its own set of rituals and routines can severely disrupt the life of a toddler. हॉस्पिटल में आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद के होते हैं, लाइक इतने बजे वो क्लीनिंग करने के लिए आ जाएंगे और उठा देंगे, इतने बजे उनको बाथ करने के लिए वो सब आ जाएंगे, यूएपी। सो हॉस्पिटल के रिचुअल्स एंड रूटीन्स will be different from the toddler's own routine of the house. वो घर पे अलग तरह से रह रहा था और यहाँ पर अलग तरह से रह रहा है। सो उसमें जो डिसरप्शन हुआ है, सो उसकी वजह से कैन सीवियरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ टॉडलर। टॉडलर को वो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। The lack of control often is exhibited in behaviors related to feeding, toileting, playing and bedtime. Lack of control कहाँ पर देखने को मिलेगा? So certain behaviors में देखने को मिलेगा, like feeding में उसका कंट्रोल अभी लॉस हो गया है, टॉयलेटिंग में, प्लेइंग में, बेड टाइम में, सब में वो सारा उसका स्केड्यूल ऑल्टर हो गया है फ्रॉम द हाउस। सो उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड द टॉडलर मे डेमोस्ट्रेट द रिग्रेशन, जो ऑलरेडी हमने पॉइंट देखा। रिग्रेशन मींस व्हाट इज रिग्रेशन? अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग द थिंग्स। सो टॉडलर और उसने नई चीजें देखी थी, सीखी थी, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग उसने सीखा था, सब सीखा था, वो अनकॉन्शियसली वो सब भूल जाएगा। देयर विल बी रिग्रेशन। वो खुद से भूलाना नहीं चाहता, बट ऑटोमेटिक वो भूल गया। अभी सीखा था, फिर ऑटोमेटिक वो भूल गया। सो देयर देयर विल बी रिग्रेशन। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, नाउ अभी टॉडलर और इन्फेंट हॉस्पिटलाइज है, सो बीइंग अ नर्स आपको क्या इंटरवेंशन करनी है? सो लेट्स स्टडी दैट। So provide a therapeutic touch and speak softly to the infant. Infant को आपको therapeutic touch देना है, बहुत softly आपको बात करनी है उसके साथ। Provide opportunities for sucking and oral stimulation for infant using a pacifier if the infant is NPO. अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, लाइक पेशेंट की सर्जरी करवानी पड़ी, इन्फेंट है फिर भी कुछ ऐसा सिचुएशन था, तो वो तो बच्चा है, उससे तो पता नहीं चलेगा, इन्फेंट है, सो उसको तो सकिंग और ऐसा करना चाहिए, तो वो तो डिमांड करेगा। सो आप उसको सकिंग के लिए, ओरल स्टिमुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो। कैसे? पैसिफायर देकर। आप खाना नहीं दे सकते बिकॉज वो आपने एनपीओ किया है, बट आप पैसिफायर, व्हाट इज पैसिफायर? आर्टिफिशियल निप्पल जीवन। हाँ,
जो आर्टिफिशियल निपल जैसा आता है जो बेबीज अपने मुंह में रखते हैं, सो आप दे सकते हो, तो फ्रिक्वेंटली उसको च्यू करके उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ओरल स्टिमुलेशन होगा उसको। Provide stimulation if appropriate for the infant using objects of contrasting colors and textures such as age appropriate toys. Yes, जो infants होते हैं उनको अभी कुछ पता नहीं चलेगा वो किस पर अट्रैक्ट होंगे, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, डार्क कलर्स, ऐसे एज अप्रोप्रिएट उनके टॉयज होते हैं। हर एज का चाइल्ड का टॉय अलग अलग होगा। सो इन्फेंट को अभी ब्लॉक्स दे दोगे तो दे कैन नॉट प्ले विद द ब्लॉक्स, इंस्टेड वो इंजेस्ट कर लेंगे। बट उसको ऐसे कलरिंग पिक्चर्स दोगे, कॉन्ट्रास्ट कलर्स के देखो, तो उससे वो देखकर खुश होगा। तो आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइड चॉइसेस as much as possible to the toddler to enable them to have some control. Yes, आप जो टॉडलर है उसको चॉइसेस दे सकते हो, जितनी हो सके उतनी चॉइसेस दो कि वो कंट्रोल, जो उसने अपना कंट्रोल सीखा था उसकी लाइफ में, वो लॉस्ट ना हो जाए। लाइक फीडिंग के लिए, टॉयलेटिंग के लिए, प्लेइंग, बेड टाइम पर उसका कंट्रोल था, उसको पता था इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। सो वो कंट्रोल अभी लॉस्ट हो गया है ड्यू टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, देयर इज अ डिग्रेशन। सो वो ना हो जाए उसके लिए आपको टॉडलर को चॉइसेस देनी होगी। अप्रोच द टॉडलर विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। टॉडलर के साथ सामने आप जाते हो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जाओ। नेक्स्ट, अलाउ द टॉडलर टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ प्रोटेस्ट। यस, हमें पता है कि जो टॉडलर है वो प्रोटेस्ट करेगा ड्यू टू द सेपरेशन एंजाइटी, सो उसको करने दो प्रोटेस्ट। जो भी उसको फीलिंग्स है वो वेंट अप होने दो। एनकरेज द टॉडलर टू टॉक अबाउट पेरेंट्स और अदर्स इन देयर लाइफ। हमें टॉडलर से ऐसे बात करनी है कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, आपके घर में कौन है, आपको कौन ज्यादा पसंद है, तो जो भी उनकी लाइफ में है, अदर्स, पेरेंट्स, उनके बारे में आप को टॉक करवाना है टॉडलर से। एक्सेप्ट रिग्रेशन बिहेवियर विदाउट रिडिक्यूलिंग द टॉडलर। यस, हमें पता है कि देयर इज अ रिग्रेसिव बिहेवियर। रिग्रेसिव बिहेवियर इन व्हाट टर्म्स? unconsciously steal bullish है। यस, अभी बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग उसने सीखा था वो भूल गया। सो आप उसके साथ ऐसा करो कि कितना बड़ा हो गया, आप सुसु कर रहे हो अंदर, टॉयलेट कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। नो, वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट द रिग्रेसिव बिहेवियर बिकॉज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी, ऐसा हुआ है। सो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वी कैन नॉट से दैट चाइल्ड कि आपने ऐसा क्यों किया, और रिडिक्यूलिंग हम नहीं, रिडिक्यूलस नहीं कर सकते। लाइक हम वी कैन नॉट टेल दैट टॉडलर दैट हाउ रिडिक्यूलस यू आर। प्रोवाइड द टॉडलर विथ अ फेवरेट एंड कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। टॉडलर से जो फेवरेट और कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स है वो आप दे सकते हो। यूटिलाइज द प्ले थेरापी फॉर द टॉडलर। टॉडलर को खेलना ज्यादा पसंद होगा, सो आप प्ले थेरापी भी कर सकते हो व्हेन द टॉडलर इज इन हॉस्पिटल। अलाउ द टॉडलर एज मच मोबिलिटी एज पॉसिबल। जितना हो सके उसको मूवमेंट करनी है, करने दो। जितनी मोबिलिटी वो कर सकता है उसको करने दो। एंटिसिपेट टेम्पर टेंट्रम्स फॉर द टॉडलर। हाँ, we have to anticipate. What is anticipate? Anticipation means આપણે assume કરી अज्यूम ધારીએ કે करो। हाँ, अभी वो टॉडलर है तो टेम्पर टेंट्रम तो होंगे ही, सो वी हैव टू एंटिसिपेट कि ऐसा होगा ही। देयर मस्ट बी टेम्पर टेंट्रम। वो एक तो पेरेंट्स से सेपरेट हुआ है, नए एनवायरनमेंट में है, सो टेम्पर टेंट्रम तो करेगा ही। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंटिसिपेट द टेम्पर टेंट्रम्स फॉर द फ्रॉम द टॉडलर एंड मेंटेन अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल एक्टिंग आउट। समटाइम्स टेम्पर टेंट्रम में बच्चे क्या करेंगे, दीवार पर जाकर ऐसे सिर पटकाएंगे, कुछ अनसेफ एक्टिविटीज करेंगे। सो जब वो फिजिकल एक्ट करे, टेम्पर टेंट्रम्स में वर्बल करेगा तो चलेगा, बट कुछ चाइल्ड फिजिकल एक्ट्स भी करते हैं, खुद को इंजरी कर दे, इतना ज्यादा टेम्पर टेंट्रम करेंगे। सो जब भी वो फिजिकल एक्टिंग आउट करे, सो हमें सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि उसको इंजरी ना हो जाए टेम्पर टेंट्रम के वक्त। एम्प्लॉय पेन रिडक्शन टेक्निक्स एज अप्रोप्रिएट। यस, उसको पेन होगा हॉस्पिटल में, लाइक इंजेक्शन दिया है या कुछ भी दिया है, सो पेन रिडक्शन टेक्निक्स हमें यूज करनी है कि पेन उसको ना हो, जितना हो सके उतना कम पेन हो। For the hospitalized toddler, this is the real important point that you have to remember. For the hospitalized toddler, provide routines and rituals as close as possible to what they are used to do at home. Yes, हमने देखा कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में सब टाइमिंग अलग अलग होंगे, सो उससे लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। जो उसने अभी कंट्रोल गेन किया था वो चला जाएगा। सो जितना हो सके उतना
कैसा रूटीन प्रोवाइड करो जो ऑलरेडी वो घर पर कर रहा था, लाइक इतने बजे उसको खाना मिल रहा था तो उतने बजे खाना हो सके पॉसिबल तो दो, इतने बजे वो सोता था घर पे तो उतने बजे उसको सोने के लिए बोलो। तो जैसा रूटीन वो घर पर फॉलो कर रहा था, जितना हो सके उतना क्लोज सेम रूटीन उसको दो हॉस्पिटल में भी। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, सो दिस इज अबाउट हॉस्पिटलाइज इन्फेंट एंड टॉडलर। उसमें हमने कौन से पॉइंट्स देखे? फर्स्ट तो सेपरेशन एंजाइटी, सेकंड फियर ऑफ इंजरी एंड पेन, थर्ड लॉस ऑफ कंट्रोल एंड फोर्थ इंजरी। ये चारों के चार पॉइंट्स हम सारी एज ग्रुप में देखेंगे। तो सेपरेशन एंजाइटी में वो प्रोटेस्ट करेगा, देयर विल बी अ प्रोटेस्ट फेज, डिस्पेयर फेज एंड डिटैचमेंट फेज। फियर ऑफ इंजरी और पेन क्यों होता है वो हमने देखा। लॉस ऑफ कंट्रोल क्या क्यों होता है, क्या लॉस हो सकता है वो हमने देखा। एंड इंटरवेंशन देखे कि बीइंग अ नर्स हमें कैसे इंटरवेंशन करने चाहिए व्हेन द टॉडलर और इन्फेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड। Next age group is the hospitalized preschooler. Before starting this topic, let's take a short break for 10 minutes. After that, we will start the topic. Okay, so let's study about the hospitalized preschooler. So let's see the clinical judgment box. A nurse is caring for a hospitalized preschooler who is very apprehensive. To promote comfort for the child, the nurse would take the following actions. एक प्री स्कूलर एडमिटेड है एंड द चाइल्ड इज सो अप्रीहेंसिव, लाइक सो एंशियस एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड, बहुत अप्रीहेंसिव हो गया चाइल्ड। तो उसको कंफर्ट करने के लिए बीइंग अ नर्स हमें कौन सी एक्शंस लेनी चाहिए? सो फर्स्ट इज प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, टेक टाइम टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। थोड़ा टाइम लो, उसको एडजस्ट होने दो, डायरेक्टली ऐसे जाके बॉम्बार्डिंग मत कर दो उस पर। टेक योर गिव द चाइल्ड टाइम टू कम्युनिकेट। अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स सच एज एंजाइटी, फियर और एंगर। जो भी उसकी फीलिंग्स है, लाइक उसको गुस्सा आ रहा है, फियर है, एंजाइटी है, जो भी है उसको एक्सप्रेस करने दो। एक्सेप्ट द रिग्रेसिव बिहेवियर। कुछ भी रिग्रेसिव बिहेवियर हो, रिग्रेसिव बिहेवियर मीन सिंपली वो जो भी कुछ भूल गया है जो उसने न्यूली लर्न किया था, सो वो एक्सेप्ट करो रिग्रेसिव बिहेवियर को। असिस्ट द प्री स्कूलर विथ मूविंग फ्रॉम रिग्रेसिव टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। यस, उसको हेल्प करो, जो रिग्रेसिव बिहेवियर था वो सब भूल गया था, नाउ उससे उसको फिर से अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जाने के लिए उसको हेल्प करो, असिस्ट करो प्री स्कूलर को। एनकरेज रूमिंग इन विथ पेरेंट्स और लिविंग अ फेवरेट टॉय विद द चाइल्ड। यस, पेरेंट्स को उसके रूम में मतलब अलाउ करो, या फिर उसका फेवरेट टॉय है जो उसको बहुत पसंद है वो भी आप चाइल्ड को दे सकते हो, उसके रूम में अलाउ कर सकते हो, एनकरेज करो। अलाउ मोबिलिटी एंड प्रोवाइड प्ले एंड डाइवर्जनल एक्टिविटीज। मोबिलिटी अलाउ करो जितना हो सके, उसको इंडिपेंडेंट रखो, डाइवर्जनल एक्टिविटीज करवाओ, उसको खेलना है तो खेल सके, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि खड़े होके खेलना स्टार्ट कर दो। अगर चाइल्ड ओके है, फीवर और उसके लिए एडमिट हुआ है, तो ये सब कर सकता है। encourage interactions for the preschooler with other children of the same age group if possible. Yes, अगर ऐसे सेम एज ग्रुप वाले दूसरे भी चाइल्ड हो हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, तो आप दोनों का इंटरेक्शन करने के लिए भी उनको एनकरेज कर सकते हो कि ये दूसरा चाइल्ड है, बात करो उससे ऐसे। एनकरेज द प्री स्कूलर टू बी इंडिपेंडेंट, जितना हो सके उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर सिंपली ऑन द प्री स्कूलर्स लेवल। आप कुछ उस पर प्रोसीजर करने वाले हो या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप उसको ऐसे स्टोरी के फॉर्म में या फिर एग्जाम्पल्स देके, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देके उनको समझा सकते हो कि कैसे होगा, क्या होगा। अवॉइड इंट्रूसिव प्रोसीजर्स व्हेन पॉसिबल, जितना हो सके उतनी इन्वेजिव प्रोसीजर्स मतलब पॉसिबल हो सके उतनी अवॉइड करनी है। अगर नेसेसिटी है तो ही करो, अननेसेसरी पंचर्स और ऐसा मत करो। So this is the actions. This is how you will promote the comfort in the preschooler. Now let's see first, that is separation anxiety. Preschoolers में भी separation anxiety होती है. The separation anxiety is generally less obvious and less serious than in toddler. हाँ, सेपरेशन एंजाइटी प्री स्कूलर्स में होगी, बट जितनी इन्फेंट और टॉडलर्स में होती है उतनी सीवियर नहीं होगी, थोड़ी कम होगी, बट होगी सही। as the stress increases, the preschooler's ability to separate from the parents decreases. Yes, normally
अगर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस कम होगा तो वो अच्छे से सेपरेट हो जाएगा पेरेंट्स से। बट जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, पेरेंट्स से सेपरेट होने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो फर्स्ट फेज सेपरेशन एंजाइटी में दे विल डू द प्रोटेस्ट। कैसे? द प्रोटेस्ट इज लेस डायरेक्ट एंड अग्रेसिव देन इन द टॉडलर। टॉडलर थे उतने अग्रेसिव नहीं थे, वो क्राई कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, बाइटिंग कर रहे थे और ऐसा। बट प्री स्कूलर का क्या होगा? डायरेक्टिव नहीं होगा, एक तो लेस डायरेक्टिव होगा और बहुत अग्रेसिव होगा कंपेयर टू लेस डायरेक्टिव एंड लेस अग्रेसिव देन इन द टॉडलर्स। उनका उतना जो टॉडलर्स जैसा है उतना अग्रेसिव नहीं होगा, उससे कम होगा। द प्री स्कूलर्स मे डिस्प्लेस फीलिंग्स ऑन टू अदर्स। प्री स्कूलर्स क्या करेंगे? उनकी जो फीलिंग्स है वो दूसरों पर निकालेंगे, लाइक दूसरों के ऊपर उनकी फीलिंग्स डिस्प्लेस करेंगे। उनको गुस्सा है जिसके प्रति है वो उसके दूसरे लोगों पर डिस्प्लेस करेंगे सारी उनकी फीलिंग्स। तो दिस इज हाउ द टॉडलर प्रोटेस्ट ड्यू टू द सेपरेशन एंजाइटी। नेक्स्ट इज डिस्पेयर। डिस्पेयर कैसे होगा उनमें? सो द प्री स्कूलर रिएक्ट्स इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ टॉडलर। जो प्री स्कूलर का रिएक्शन है डिस्पेयर का, लाइक विड्रॉन कर देना, डिप्रेस्ड हो जाना, फिर एनवायरमेंट में इंटरेस्ट ना रहना, तो वो सिमिलर ही है, टॉडलर के जैसा ही होगा। द प्री स्कूलर इज क्वाइटली विड्रॉन, डिप्रेस्ड एंड अनइंटरेस्टेड इन द एनवायरमेंट। वो विड्रॉन, खुद को विड्रॉ कर लेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, खुश नहीं रहेगा और उसको एनवायरमेंट में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। The child exhibits loss of newly learned skill, that is the repressive behavior। और newly जो स्किल सीखे हैं वो सब लॉस कर देगा, भूल जाएगा वो। बट दैट इज अनकॉन्शियसली, उसे पता भी नहीं है कि ऐसा हुआ, बट ड्यू टू द स्ट्रेस एंड हॉस्पिटल एनवायरमेंट वो हो जाता है। The preschooler becomes generally uncooperative, refusing to eat or take medicines। डिस्पेयर फेज में क्या होगा? वो जो प्री स्कूलर है वो अनकोऑपरेटिव हो जाएगा। अभी खाना दोगे तो कहेगा मुझे नहीं खाना है, मेडिसिन दोगे तो मुझे नहीं लेनी है, सो वो अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। द प्री स्कूलर रिपीटेडली आस्क व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग। और प्री स्कूलर क्या करेंगे? रिपीटेडली हर 5-10 मिनट में पूछेंगे मेरे मम्मी पापा कब आएंगे, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, वो कब आएंगे। सो रिपीटेडली ऐसा वो आपको पूछता रहेगा कि व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग। डिटैचमेंट सिमिलर टू टॉडलर। सो प्री स्कूलर्स उतनी जल्दी पेरेंट्स से डिटैच नहीं हो जाएंगे, शॉर्ट पीरियड में वो डिटैच नहीं हो जाते हैं, बट अगर लॉन्ग पीरियड से उनको रखो दूर तो डिटैच हो जाएंगे। एंड अगर एक बार डिटैच हो गए सो फिर से उसको रिवर्स करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। अटैचमेंट होना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। So this is all about separation anxiety. Next is fear of injury and pain. Why there is fear of injury and pain? What happens in that? So let's see. The preschooler has a general lack of understanding of body integrity। जो प्रीस्कूलर्स होते हैं उनको उतनी बॉडी इंटीग्रिटी और बॉडी के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी है नहीं। द चाइल्ड फियर्स इन्वेजिव प्रोसीजर्स एंड म्यूटिलेशन। उनको डर किसका लगता है? इन्वेजिव प्रोसीजर्स का डर लगेगा। इन्फेंट और टॉडलर को अभी पता नहीं है कि क्या होता है, बस उनको डर किससे लगता है कि जो भी डॉक्टर कर रहे हैं उससे पेन होता है, सो उसीलिए उनको डर लगता है। बट इसको क्या होगा? इन्वेजिव प्रोसीजर्स का डर लगेगा कि मुझे इंजेक्शन डाल देंगे, मुझे मेरे अंदर पंचर करेंगे। सो इन्वेजिव प्रोसीजर्स और म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन मीन्स कुछ बिगाड़ना, मीन्स डिस्टॉर्ट करना, डैमेज करना। सो कुछ डैमेज होगा, मुझे लग जाएगी। सो ऐसा सोच कर उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। The child imagines things to be much worse than they are। वो इतनी खराब इमेजिनेशन करेंगे, इंजेक्शन सुई होती इतनी पतली है बट वो इमेजिन ऐसा करेंगे कि पूरी खील अंदर डाल देंगे ना, वैसा वर्स्ट इमेजिन करेंगे कि बहुत बुरा होगा मेरे साथ। सो उनका इमेजिनेशन बहुत वर्स हो जाता है कि बहुत खराब होगा उनके साथ। The preschoolers believes that they are ill because something they did or thought। उनको क्या लगता है कि वो क्यों बीमार हो गए? तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया था या फिर कुछ गलत सोचा था, इसीलिए वो बीमार है और ये हॉस्पिटल में उनको पनिशमेंट हो रही है। सो दे विल थिंक लाइक दैट। लॉस ऑफ कंट्रोल्स। उनमें लॉस ऑफ कंट्रोल्स क्यों होता है? द प्रीस्कूलर लाइक्स फैमिलियर रूटीन्स एंड रिचुअल्स एंड मे शो रिग्रेशन इफ not allowed to maintain some control। yes, प्री स्कूलर में
प्री स्कूलर में भी सेम होता है। उनको जो रेगुलर उनका रूटीन और रिचुअल था उससे वो फैमिलियर रहते हैं, उनको वो करना अच्छा लगता है बिकॉज उसमें उसने कंट्रोल गेन कर लिया था और वो उनकी हैबिट हो गई थी। बट अगर उसमें चेंज हो जाएगा सो देयर विल बी अ रिग्रेशन। अगर उसमें जो कंट्रोल है उनका सेल्फ कंट्रोल मेंटेन नहीं हो जाएगा सो देयर विल बी लॉस ऑफ कंट्रोल, रिग्रेशन हो जाएगा। The preschoolers' egocentric and magical thinking limits their ability to understand events because they view all experiences from their own self-reference, that is egocentric perspective. जो प्री स्कूलर होते हैं वो बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो मतलब सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा हो गया और उनकी मैजिकल थिंकिंग होती है। दे हैव सो मच ऑफ इलॉजिकल, प्री लॉजिकल और मैजिकल थिंकिंग। वो लोग आपसे ऐसा बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके कभी छोटे भाई बहन या होंगे ना, तो जो कार्टून में देखते हैं जो होता है उनको बस ऐसे ही टॉयज और चीजें चाहिए होती है। सो दे हैव मैजिकल थिंकिंग और उसकी वजह से वो ईगोसेंट्रिसिटी की वजह से और मैजिकल थिंकिंग की वजह से वो जो सारे इवेंट्स है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनके लिए क्या है, सारे एक्सपीरियंसेस और वो कैसे देखेंगे, जैसा खुद को उन्होंने जैसे इमेजिन किया है वो जैसा सोचते हैं ऐसे पर्सपेक्टिव से ही वो सारे एक्सपीरियंस को देखेंगे। कुछ नया अभी उनके अंदर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द इगोसेंट्रिसिटी एंड मैजिकल थिंकिंग। The child has attained a good deal of independence and self-care at home and may expect that to continue in the hospital. Yes, प्रीस्कूलर चाइल्ड है, उसने अच्छी से इंडिपेंडेंस ले ली है, सेल्फ केयर कैसे करनी है ना, अभी उसको थोड़ा थोड़ा ब्रशिंग भी आता है, खुद से वो टॉयलेट भी जाता है, कपड़े मतलब पहन सकता है, निकाल सकता है। सो उसने जितनी हो सके उतनी अच्छी इंडिपेंडेंस ले ली है सेल्फ केयर के लिए घर पर। और वो भी सेम एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ मेरा हॉस्पिटल में भी मैं खुद ही करूंगा, ब्रशिंग कपड़े भी खुद पहनूंगा। सो दे डू एक्सपेक्ट दिस थिंग्स। इंटरवेंशंस क्या करनी है अगर प्री स्कूलर एडमिटेड है हॉस्पिटल में? सो बीइंग अ नर्स व्हाट आर द इंटरवेंशंस दैट यू हैव टू डू? सो प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, टेक टाइम टू कम फॉर कम्युनिकेशन, थोड़ा टाइम दो उसको भी और अच्छे से कंफर्ट हो जाए देन कम्युनिकेशन इनिशिएट करो। अलाउ द प्री स्कूलर टू एक्सप्रेस द एंगर, प्री स्कूलर है उसको एंगर एक्सप्रेस करने के लिए टाइम दो कि हाँ अभी उसको गुस्सा आ रहा है सो निकाल दो गुस्सा। एक्नॉलेज फियर्स एंड एंजाइटी, उसको कुछ फियर्स हो गया, एंजाइटी होगी, जैसा हमने देखा कि वो बहुत वर्स इमेजिन कर लेंगे कि हाँ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। सो जो भी उनके फियर्स और एंजाइटी है वो एक्नॉलेज करो, जानने की कोशिश करो। एक्सेप्ट रिग्रेसिव बिहेवियर, यस वी नो कि उनमें भी रिग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, सो दैट एक्सेप्ट दैट बिहेवियर। assist the preschooler in moving from regressive to appropriate behavior according to age, yes उसको रिग्रेसिव बिहेवियर होगा, वो स्किल्स अभी उसने सीखा था, हाउ टू ओपन द जिप, हाउ टू अनडू द क्लोथ्स उसने सीखा था बट अभी वो भूल गया है। सो उसको हेल्प करो, रिग्रेसिव बिहेवियर में से अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जाने के लिए उसको हेल्प करो कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो फिर से सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि भूल गया तो कम्प्लीटली भूल जाएगा, बस उसको हेल्प करनी पड़ेगी आपको। एनकरेज रूमिंग इन और लिविंग अ फेवरेट टॉय, रूमिंग इन भी आप एनकरेज कर सकते हो, उसका फेवरेट टॉय है वो भी आप उसके रूम में रख सकते हो। अगर उसको कुछ टॉय लेकर सोने की आदत है तो वो टॉय आप अलाउ कर सकते हो। अलाउ मोबिलिटी एंड प्रोवाइड प्ले एंड डाइवर्जनल एक्टिविटीज, मोबिलिटी अलाउ करनी है, फिर प्ले आप दे सकते हो कि खेलना है तो खेल सकते हैं, डाइवर्जनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ भी वो अंदर कर सकते हैं लाइक कलरिंग जो भी उनको पसंद है। Place the preschooler with other children of the same age if possible. Yes, जो प्री स्कूलर्स हैं उनको दूसरे ऐसे प्री स्कूलर के साथ आप रखो कि वो दोनों एक साथ खेल सके, बात कर सके, अगर पॉसिबल हो। हॉस्पिटल में भी होने चाहिए, अगर है तो ऐसा कर सकते हो आप। एनकरेज द प्री स्कूलर टू बी इंडिपेंडेंट, जितना हो सके उसको इंडिपेंडेंट रखना है, वो खुद से खाए खुद से सब करे ऐसा रखना है, हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना है उससे। एक्सप्लेन प्रोसीजर सिंपली ऑन द प्री स्कूलर्स लेवल, सारी जो प्रोसीजर्स उन पर होने वाली है जो भी है उनको समझ आए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से आपको समझानी है। अवॉइड इंट्रूसिव प्रोसीजर्स व्हेन पॉसिबल, जब भी हो सके इन्वेजिव प्रोसीजर्स अवॉइड करनी है। अलाउ द वियरिंग ऑफ अंडरपेंट्स, यस अभी ये बच्चे को, इन लोगों को कैसा होगा, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं
टॉडलर तक तो उनको पता नहीं चलेगा कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म दोगे और उसमें अंडरवेयर नहीं होगी तो लाइक अंडर पैंट्स नहीं होगी और कुछ नहीं होगा तो चलेगा, उनको भी पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बट जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको शर्म आएगी, सो उनको अंडर पैंट्स पहनने हैं सो पहन सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं पहनना है, नहीं। इफ दे वांट टू वियर द अंडर पैंट्स वी कैन अलाउ देम टू वियर इट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So next grade age group is hospitalized school age child. अभी स्कूल एज चाइल्ड हॉस्पिटल में है, सो कैसे करना है, क्या होगा? सेम। कौन से कंपोनेंट्स हम पॉइंट्स देखेंगे? पहले क्या देखेंगे हम? Separation of anxiety. सेपरेशन एंजाइटी, फिर डिटैचमेंट, हाँ, सो Fear उसमें of फेज फियर ऑफ इंजरी एंड पेन, देन लॉस ऑफ loss कंट्रोल of एंड इंटरवेंशन। सारे एज ग्रुप में सेम है, बस डिफरेंसेस हो गए, जैसे जैसे पर्सन बड़ा होता है वैसे वैसे मैच्योर होता है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आना स्टार्ट होंगे, बट ये पॉइंट्स आपको स्टडी करने हैं। सो नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइज स्कूल एज चाइल्ड, उसमें सेपरेशन एंजाइटी में क्या होगा? सो लेट्स स्टडी द स्कूल एज चाइल्ड इज accustomed to periods of separation from the parents, but as the stressors are added the separation becomes more difficult। अभी जो स्कूल एज चाइल्ड है वो यूज टू हो गया है सेपरेशन से, वो अभी स्कूल जाता है तो पेरेंट्स से सेपरेटेड ही रहता है ना, सो अभी उसके लिए सेपरेशन इज नॉट न्यू थिंग, वो अभी उससे एडजस्ट हो गया है। हाँ, बट कुछ स्ट्रेस ऐड हो जाएगा, लाइक वो बीमार है और कुछ है और उससे सेपरेट होना पड़ेगा, तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। बाकी उसको ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट नहीं हो सकता है। नाउ द स्कूल एज चाइल्ड is well adapted for the separation, but जैसे जैसे stress ऐड होगा separation थोड़ा difficult हो जाएगा। The child is more concerned with missing school and fear that the friends will forget them। उनको अभी मेन कंसर्न क्या है कि हॉस्पिटल में रहेगा तो स्कूल मिस हो जाएगी, पढ़ना चला जाएगा, लाइक पढ़ाई उनके लिए अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको ऐसा लगेगा कि मैं 4-5 दिन स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझे भूल जाएंगे। सो ये फियर उनमें ज्यादा होता है। Usually, the stages of behavior of protest, despair, and detachment do not occur with the school age children। अभी जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, डिस्पेयर भी नहीं होगा, डिटैचमेंट भी नहीं होगा, अभी ये नहीं होगा। नाउ द चाइल्ड इज ग्रोन अप, जैसे जैसे स्कूल एज चाइल्ड में अभी वो बंद हो जाएगा। सो सिर्फ सेपरेशन एंजाइटी में इतना ही था। फियर ऑफ इंजरी और पेन, उसमें क्या है? द स्कूल एज चाइल्ड फियर्स बॉडीली इंजरी एंड पेन। अभी जो स्कूल एज चाइल्ड है उसको डर किसका लग रहा है? सो बॉडी में जो इंजरी हो रही है, इंजरी होगी या इंजरी के वक्त, नीडल के वक्त जो दर्द होगा उससे उसको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसका उसको डर लगता है। द चाइल्ड फियर्स इलनेस इटसेल्फ, डिसेबिलिटी, डेथ एंड इंट्रूसिव प्रोसीजर्स इन जेनिटल एरियाज। यस, चाइल्ड को किसका डर लगता है? तो एक तो इलनेस, खुद का भी डर लगता है, वो बीमार, उसको ऐसा डर लगेगा कि मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा ना, उसको इलनेस का भी डर लगेगा, डिसेबिलिटी का भी डर लगेगा कि कुछ होगा तो डिसेबल हो जाएगा, डेथ का भी उनको डर लगता है। फिर इन्वेजिव प्रोसीजर्स, ऐसे जेनिटल एरियाज में कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स, तो उसका भी उसको डर लगेगा अभी। द चाइल्ड इज अनकंफर्टेबल विथ एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एग्जामिनेशन। स्कूल एज चाइल्ड में आप कोई भी सेक्सुअल एग्जामिनेशन करोगे सो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, वो आपको टच नहीं करने देगा। The child groans or weans, holds rigidly still and communicates about pain। चाइल्ड क्या करेगा जब भी उसको पेन होगा, कुछ भी होगा, या फिर कभी भी आप इन्वेजिव प्रोसीजर करोगे, सो उसको दर्द होगा तो वो ग्रोनिंग करेगा, डिफरेंट वॉइसेस निकालेगा, ग्रोनिंग साउंड निकालेगा, वीनिंग साउंड निकालेगा। सो द चाइल्ड विल ग्रोन और वीन्स, और वो खुद को इतना स्टिल रखेगा, उसको लगेगा कि मैं थोड़ा भी मूव करूंगा या करूंगी तो मुझे दर्द होगा। सो इतना स्टेबल, इतना खुद को फोर्सफुली स्टिल रखने का ट्राई करेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और वो कम्युनिकेट करेगा कि हाँ मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। सो दे विल कम्युनिकेट अबाउट द पेन। लॉस ऑफ कंट्रोल, उसमें क्या है? सो द चाइल्ड इज यूजुअली हाईली सोशल, इंडिपेंडेंट एंड इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज। स्कूल गोइंग जो चाइल्ड होगा वो एकदम हाईली सोशल होगा, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट, एंड वो सारी एक्टिविटीज खुद से कर सकता है। द चाइल्ड सीक्स इंफॉर्मेशन
and ask relevant question about the test and procedures and illnesses. हाँ, ये चाइल्ड होते हैं ना, उनके एक तो क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे स्कूल एज में। जब वो चाइल्ड पहुंच गया तो इट्स ओवर, वो इतने क्वेश्चंस करेंगे, इंफॉर्मेशन उनको बहुत चाहिए। सो सारे टेस्ट प्रोसीजर्स और इलनेस के बारे में आपको रिलेवेंट वो क्वेश्चंस पूछते ही रहेंगे, क्यों ऐसा करना है, क्या, यू विल टायर्ड बाय आंसरिंग देम। सो उनमें क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होगा। द चाइल्ड एसोसिएट्स देयर एक्शन विद द कॉज ऑफ इलनेस। यस, ये चाइल्ड भी उनकी एक्शन को कनेक्ट करेंगे कि उन्होंने ये किया था, ये किया था, वो किया था, उसकी वजह से इलनेस हुई है। So they are connecting their actions and illness. The child may feel helpless and dependent if physical limitations occurs. अगर कुछ physical limitation हो जाए, like for example school going child है, बच्चा है और उसको फ्रैक्चर हो गया, so physical limitations हो गई कुछ, अभी वो चल नहीं सकता ना अच्छे से जब तक वो हील नहीं होगा। so that due to the physical limitations वो helpless फील करेगा और डिपेंडेंट फील करेगा। is there any regression? स्कूल एज चाइल्ड में रिग्रेशन होगा? स्कूल एज चाइल्ड में रिग्रेशन हो सकता है? यस और नो? नो, व्हाई? કેમ કે યાદ રાખી શકશે, બધું ભૂલી નહીં જાય। अभी वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया है। सो ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह से वो जो सीखा था वो भूल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। सो रिग्रेशन हमने सिर्फ प्री स्कूलर तक ही देखा था, उसमें रिग्रेशन हो सकता है, स्कूल एज पीरियड के बाद रिग्रेशन नहीं होगा। इंटरवेंशंस क्या करोगे व्हेनेवर देयर इज अ स्कूल एज चाइल्ड? सो एनकरेज रूमिंग इन। रूमिंग इन आप कर सकते हो, लाइक पेरेंट्स को स्टे करा सकते हो अंदर। फोकस ऑन द चाइल्ड्स एज, स्कूल एज चाइल्ड्स एबिलिटी एंड नीड। वो स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है उसकी एबिलिटी क्या है, क्या कर सकता है वो खुद से, कैसे प्लेस करेगा, क्या उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। एनकरेज द स्कूल एज चाइल्ड टू बिकम इन्वॉल्व विथ देयर ओन कैरियर्स। हमें चाइल्ड, स्कूल एज चाइल्ड है उसको एनकरेज करना है कि खुद की केयर कैसे करनी है, उनकी खुद की केयर में आपको उसको इन्वॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक्सेप्ट रिग्रेशन बट एनकरेज इंडिपेंडेंस। यस, उनमें रिग्रेशन नहीं होता है, इट इज वेरी अनकॉमन, बट इफ इट इज देयर ड्यू टू एनी रीजन, चाइल्ड को रिग्रेशन हो गया है, सो डोंट लाइक उसको ब्लेम मत करो कुछ भी, डोंट ओवर रिएक्ट। इफ इट इज देयर, इट इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट, बट इफ इट इज देयर, एक्सेप्ट इट एंड एनकरेज द इंडिपेंडेंस। फिर से उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, फिर से उसको खुद से करने दो कि हो जाएगा, डू इट बाय योरसेल्फ, इट विल रिजॉल्व। प्रोवाइड चॉइसेस टू द स्कूल एज चाइल्ड। स्कूल एज चाइल्ड है उसको चॉइसेस दो जितनी हो सके, उसको क्या जो भी करना है, बट मेक श्योर कि यू आर इंश्योरिंग द सेफ्टी। उसको चॉइसेस दे रहे हो बट जो उसके लिए सेफ नहीं है वो हम नहीं कर सकते। अलाउ एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। वो जो भी फील कर रहा है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, एंशियस है, एंगर है, लाइक जो भी उसकी फीलिंग्स है, फियर है, तो वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करो। वर्बली भी कर सकता है या नॉन वर्बली भी। एक्नॉलेज फियर एंड कंसर्न्स एंड अलाउ फॉर डिस्कशन। उसके फियर्स क्या है, उसकी कंसर्न्स क्या है, वो सुनो, वो जानने की कोशिश करो एंड डिस्कस करने के लिए अलाउ करो कि यू कैन टेल मी कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें क्यों डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है, ऐसे आप उसके डिस्कस कर सकते हो। एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर्स यूजिंग बॉडी डायग्राम्स और आउटलाइन। हाँ, अभी आपको कुछ प्रोसीजर समझा नहीं है तो अब आप उसको बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम मतलब हम जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे डायग्राम नहीं, बट थोड़े थोड़े डायग्राम उनको पता है। उनके लिए हार्ट मतलब वो हार्ट होगा, सो उनको जैसे समझ आता है वैसे बॉडी डायग्राम्स आप यूज करके उसको प्रोसीजर समझा सकते हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रोवाइड प्राइवेसी, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। अवॉइड इंट्रूसिव प्रोसीजर्स इफ पॉसिबल, जितना हो सके उतना इन्वेसिव प्रोसीजर्स अवॉइड करना है। अलाउ द स्कूल एज चाइल्ड टू वियर अंडरपैंट्स। उनको भी अभी शर्म आएगी, सो उनको ऐसा होगा कि मुझे अंडरपैंट्स तो पहनने हैं, सो यू कैन अलाउ देम। Involve the school age child in activities appropriate to the developmental level and illness. Yes, स्कूल एज चाइल्ड को आप एक्टिविटी करने दोगे हॉस्पिटल में, बट कैसी एक्टिविटी कर सकता है वो,
डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंटल लेवल, उसके एज अकॉर्डिंग आप उसको टॉयज दे सकते हो। अभी आप उसको हार्ड लेवल का पजल और क्विज उसको नहीं दे सकते हो। जितनी जितनी उसकी डेवलपमेंटल लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको एक्टिविटी करने दोगे, एंड डिपेंडिंग ऑन द इलनेस। अगर बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बहुत वीकनेस है, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे बेड पर ही करवाओ। सो डिपेंडिंग ऑन द इलनेस एंड डेवलपमेंटल लेवल आपको उसको एक्टिविटीज करवानी है। encourage the school age child to contact friends, yes। उसको क्या था कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे भूल जाएंगे। हम उसको encourage कर सकते हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, so you can talk और you can contact to your friends। provide for educational needs, yes। उसको अभी स्कूल मिस होने का ज्यादा कंसर्न है कि स्कूल में पढ़ाई छूट गई और होमवर्क बाकी रह गया, ये रह गया, वो हो गया। सो आप उसको एजुकेशनल नीड्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसको होमवर्क करना है तो वो कर सकता है। फिर फॉर एग्जांपल उसको ऐसा होता है नाउ डेज तो सारा होमवर्क जो भी मैडम ने पढ़ाया है वो भी ऑनलाइन आ जाता है, 2 days होमवर्क होके। सो आप सारी उसकी एजुकेशनल नीड भी प्रोवाइड कर सकते हो इन हॉस्पिटल ऑल्सो। यूज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू रिलीव पेन। अगर उसको पेन हो रहा है तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आपको यूज करनी है पेन कम करने के लिए। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइज एडोलेसेंट। अभी जो एडोलेसेंट पीरियड में जो भी चाइल्ड हॉस्पिटल में होता है, जो भी पर्सन, उसको कैसे केयर करोगे? सो फर्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी में क्या होगा? सो एडोलेसेंट आर नॉट श्योर वेदर दे वांट देयर पेरेंट्स विद देम व्हेन दे आर हॉस्पिटलाइज्ड। जो एडोलेसेंट पीरियड में होंगे ना, उनको क्या होगा कि दे आर नॉट श्योर कि उनको पेरेंट्स उनके साथ हॉस्पिटल में चाहिए या नहीं। अभी वो श्योर नहीं है। दे आर नॉट लाइक कि अभी हाँ पेरेंट्स के बिना रह नहीं सकते, ऐसा है नहीं। सो दे आर नॉट श्योर। उनको मेन कंसर्न क्या होगा? जैसे स्कूल एज चाइल्ड का मेन कंसर्न क्या था? स्कूल छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, फ्रेंड्स भूल जाएंगे। वैसे एडोलेसेंट का मेन कंसर्न क्या होगा कि उनके सारे फ्रेंड्स अभी उनके बिना ही एंजॉय करेंगे। वो हॉस्पिटल में है, सो उनको छोड़कर ही सारे फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे। सो मेन कंसर्न इज दिस। द एडोलेसेंट बिकम्स अपसेट इफ फ्रेंड्स गोज ऑन विद देयर लाइव्स एक्सक्लूडिंग देम। एडोलेसेंट दुखी हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे कि उनके फ्रेंड्स उनको छोड़कर सब एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके लिए मेन कंसर्न वो है। दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। Adolescent, the hospitalized adolescent, separation from friend is the source of anxiety, not parents। तो ये याद रखना है। एडोलेसेंट में सेपरेशन एंजाइटी किससे होती है ज्यादा? पेरेंट्स। नॉट पेरेंट्स, एडोलेसेंट में Friends. फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। उनको फ्रेंड्स अभी ज्यादा चाहिए, उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस एज। पेरेंट्स से सेपरेशन की एंजाइटी है ही नहीं उनको। उनको एंजाइटी क्या है कि उनके फ्रेंड्स से वो अलग है एंड द फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग विदाउट देम। सो उनको मेन कंसर्न सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स से है। सो रिमेंबर दिस थिंग। डोंट टिक द आंसर दैट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स। एडोलेसेंट्स में अभी सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स का मेन कंसर्न है ही नहीं। फियर ऑफ इंजरी एंड पेन, उसमें क्या है? सो एडोलेसेंट्स फियर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड देयर पीयर्स। उनको एडोलेसेंट का फियर क्या होगा? अभी उनको ऐसा फियर है कि उनको कुछ हो गया, लाइक कुछ करेंगे सो वो दूसरों से अलग दिखेंगे, या फिर उनका जो पीयर ग्रुप है उससे वो अलग दिखेंगे, अलग उनके साथ हुआ है, सो उसका उससे फियर है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एडोलेसेंस क्या है, उनको उनके अपीयरेंस का ज्यादा टेंशन होता है। उनका अपीयरेंस, उनका ग्रूमिंग, दे फोकस ऑन दिस मोर। उनको अभी दूसरी चीज की नहीं पड़ी। दे वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड पीयर्स। सो मेन कंसर्न ये है। Adolescent may give the impression that they are not afraid even though they are terrified। Adolescent क्या करेंगे? वो आपको ऐसी इंप्रेशन देंगे कि उनको डर ही नहीं लगता है, बट स्टिल डीप डाउन उनको बहुत डर लगेगा, बट दे विल टेल यू कि हाँ मुझे तो डर नहीं लगता, उसमें क्या डरना है, बट अंदर तो बहुत डर लगता होगा। The adolescent becomes guarded when any areas related to sexual development are examined। Yes, जब adolescent पे, स्कूल एज में भी बच्चा थोड़ा उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, तो एडोलेसेंट में अगर आप सेक्सुअल एग्जामिनेशन करोगे सो और जेनिटल ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन, सो वो बहुत ही लाइक गार्डेड हो जाएंगे
उनको अच्छा नहीं लगेगा। लॉस ऑफ कंट्रोल में क्या होगा? सो बिहेवियर एग्जिबिटेड इंक्लूड एंगर, विड्रॉल एंड अनकोऑपरेटिवनेस। यस, उनको क्या ज्यादा देखने को मिलता है? सो समटाइम्स दे बिकम एंग्री, विड्रॉ करेंगे और अनकोऑपरेटिव करेंगे, अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे। द एडोलेसेंट सीक हेल्प एंड देन रिजेक्ट इट। आपसे वो क्या करेंगे? आपको लाइक उनकी वो बोलेंगे कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, फिर बोलेंगे नहीं नहीं चाहिए मुझे हेल्प। सो पहले हेल्प के लिए सीख करेंगे एंड देन उसको रिजेक्ट कर देंगे कि अब मुझे नहीं चाहिए हेल्प। सो दिस इज हाउ दे रिएक्ट। ओके, इंटरवेंशंस क्या करनी है? व्हेन द एडोलेसेंट इज admitted to the hospital, so encourage question about appearance and effects of the illness on the future. आपको चाहे, मैंने क्या बोला कि एडोलेसेंट का मेन कंसर्न क्या होता है इस एज ग्रुप में? अपीयरेंस, हाँ, लुक्स। अपीयरेंस, लुक्स पर उनको फोकस ज्यादा होगा। सो आपको उनको एनकरेज करना है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि आप फ्यूचर में आपके अपीयरेंस पर कोई इफेक्ट होगा इलनेस की वजह से, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको है, सो यू कैन आस्क मी। एक्सप्लोर फीलिंग्स अबाउट द हॉस्पिटल एंड द सिग्निफिकेंस दैट द इलनेस माइट हैव फॉर द रिलेशनशिप्स। यस, आपको एक्सप्लोर करना है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से वो क्या फील कर रहे हैं, और उनको क्या फील हो रहा है कि इलनेस की वजह से उनके रिलेशनशिप पर क्या असर होगा, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर कोई है उनका पार्टनर, तो उस रिलेशनशिप पर क्या अफेक्ट होगा ड्यू टू इलनेस, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। Encourage adolescents to wear their own clothes and carry out normal grooming activities. This is so important. I have faced one question. जो एडोलेसेंट होते हैं उनको उनके खुद के कपड़े पहनने के लिए उनको पहनने हैं, सो यू कैन अलाउ देम, एंड नॉर्मल ग्रूमिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल होगी तो उसको आदत होगी लिपस्टिक करने की, काजल लगाने की डेली बेसिस पर, सो हॉस्पिटल में होगी तो भी वो ऐसा ही कंटिन्यू करेगी। सो वी कैन नॉट से दैट कि यू कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स हियर। इफ दे वांट टू डू द नॉर्मल ग्रूमिंग एक्टिविटीज, यू कैन अलाउ देम, बट मेक श्योर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आई की सर्जरी हुई है या आई इंफेक्शन है एंड द एडोलेसेंट वांट्स टू अप्लाई द काजल, विल यू अलाउ देम? नो। नो। सो इफ द सेफ्टी इज द मेन कंसर्न, अगर वो सेफ नहीं है तो नहीं कर सकते, बट कुछ और है, नॉर्मल फीवर और नॉर्मल बीमार है, या फिर कुछ अदर सर्जरी करवाई है बट उसको नॉर्मल ग्रूमिंग करना है, रेडी होना है, मेकअप अप्लाई करना है, सो उसमें हम ना नहीं बोल सकते, उसको करना है तो करने देना है। Allow favorite food to be brought into the hospital if possible. उनको जो favorite food है, but make sure that is approved by the doctor और dietitian. वो जो खा सकते हैं, उनको जो भी खाना है उनका favorite food वो allow कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, but it still be dependent by the doctor. अगर डॉक्टर बोले कि हाँ ये आप कंज्यूम कर सकते हो तभी उसको अलाउ करना है, अगर नहीं तो नहीं। So read the question. हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते, बट देयर मस्ट बी अप्रूवल बाय PHCP और डाइटिशियन। प्रोवाइड प्राइवेसी, यूज बॉडी डायग्राम्स टू प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर्स। आप उनको अभी बॉडी डायग्राम समझाकर प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करेंगे। Introduce the adolescent client to other adolescent in the nursing unit if appropriate and possible. जो adolescent client है उसको दूसरे adolescent client जो भी आपके वार्ड में यूनिट में है, अगर अप्रोप्रिएट है, दोनों मिलना चाहते हैं एंड देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, पॉसिबल है और अप्रोप्रिएट है, तब आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एनकरेज मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट विथ पीयर ग्रुप्स। उनका मेन कंसर्न है फ्रेंड्स, लुक्स, अपीयरेंस, सो उनको उनके पीयर ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट करना है, तो वो मेंटेन कर सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो मिलने भी आ सकते हैं उनसे। प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल नीड्स, यस दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एडोलेसेंट को आपको एजुकेशनल नीड्स ज्यादा प्रोवाइड करनी होगी। एजुकेशनल नीड्स इन टर्म्स ऑफ STI, that is more common in NCLEX countries among adolescents. Adolescents में STI बहुत common है in the NCLEX countries. So STI related आपको देना है। फिर क्या आप एजुकेशन दोगे जो ज्यादा कॉमन है एडोलेसेंट में?
अब्यूज फिर કરી શકે यस अब्यूज, सो रिलेटेड टू ड्रग्स एंड बैड हैबिट्स जो है, स्मोकिंग करना और वो सब, उसके लिए आप एजुकेशन दे सकते हो. विल यू गिव द हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स? No, we have to support. यस. नो, वी कैन नॉट सपोर्ट, बट वो उनका पर्सनल मैटर है, हम पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते. सो रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स हम उनको एडवाइस नहीं दे सकते और एजुकेट नहीं कर सकते, बट रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशंस लाइक एसटीआई एंड अब्यूज हम उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज बैड फॉर योर हेल्थ. आइडेंटिफाई फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स. यस, आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका गोल क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या परस्यू करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू स्टडी इन फ्यूचर, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर गोल्स क्या है, वो आप सुन सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. हेल्प डेवलप पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म. पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म कैसे यूज करना है वो आप डेवलप कर सकते हो, डेवलप करने में हेल्प कर सकते हो. So this is how you have to intervene when the adolescent client is admitted to the hospital. Understand? Yes, sir. Okay. Next is the communication approaches. अब तक हमने जो देखा सो डिफरेंट एज ग्रुप्स थी, फ्रॉम इन्फेंट टू टॉडलर, कैसे वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो आपको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, वो आपने देखा. नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन अप्रोचेस. तो उसमें भी सेम है, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग के साथ आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, उनको कैसे अप्रोच करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. कल हम ये स्टडी करेंगे. सो आज के लिए हमने एक ही टॉपिक रखा है. सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन of today's class. What we have seen today. So first we have completed about the hospitalized infant and toddler. So उसमें first topic क्या देखा हमने? What? Separation anxiety. Separation anxiety means parents से separate होने की anxiety. So उसमें क्या होगा, child क्या करेगा? There will be three phases. Yes. despair and detachment. Yes, protest करेगा, despair and detachment. Protest कैसे करेगा? So there will be crying, screaming, searching for parents. Avoid करेगा, reject करेगा contacts, verbal attack करेगा, physical fighting भी करेगा, like kicking, biting, hitting, pinching, सब करेगा. Then there will be a despair. Withdraw कर लेगा, depressed हो जाएगा, environment में interest नहीं होगा, newly learned skills भूल जाएगा. There will be detachment होगा कि नहीं होगा पेरेंट्स से? Uncommon, but long time હશે તો થશે. 2-3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने से जो टॉडलर और इन्फेंट होता है वो पेरेंट्स से डिटैच नहीं हो जाता. डिटैचमेंट कब होगा? बहुत लंबे टाइम से पेरेंट्स के साथ नहीं है तभी डिटैच होता है. सुपरफिशियली ऐसा लगेगा कि टॉडलर्स ने एडजस्ट कर लिया है, बट डीप डाउन दे स्टिल वांट देयर पेरेंट्स. वो उनको जो पेरेंट्स की जो कमी हो रही है उसकी वजह से उनको इमोशनल पेन हो रहा है. सो इमोशनल पेन से बचने के लिए वो क्या करेंगे, लाइक ऐसा अच्छा बिहेव करेंगे, पेरेंट्स से डिटैच हो गया वैसा बिहेव करेंगे, नए एनवायरनमेंट में घुल जाएंगे, नए रिलेशनशिप बनाएंगे, ये सब करेंगे. व्हाई? बिकॉज उन्होंने हार मान ली है. एंड इट इज नॉट साइन ऑफ कॉन्टेंटमेंट. ऐसा नहीं है कि उन्होंने मर्जी से अपनी इच्छा से ऐसे किया है, बस उन्होंने हार मान ली कि कुछ भी कर लो, देर इज दिस इज द थिंग, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. उसकी वजह से ऐसे सुपरफिशियली वो सब ऐसा कर रहे हैं. और डिटैचमेंट फेज में वो लोग शैलो रिलेशनशिप बनाएंगे, सेल्फ सेंटर रहेंगे और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे. अगर नॉर्मली डिटैचमेंट इज नॉट वेरी कॉमन, टेम्पररी पीरियड ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से डिटैचमेंट नहीं हो जाता है. बट इफ लॉन्ग टर्म से पेरेंट्स से दूर है एंड डिटैचमेंट हो गया तो It is not reversible. हाँ, इट कैन बी रिवर्सिबल बट देर विल बी सो डिफिकल्ट उसको रिवर्स करना. उसके जो साइड इफेक्ट्स है, पेरेंट्स से अटैचमेंट ही नहीं रही है उसको, तो रिवर्स करना दैट वुड बी सो डिफिकल्ट इन इन्फेंट एंड टॉडलर्स. फियर ऑफ इंजरी और पेन क्यों है उनको? बिकॉज उन्हें अभी पता नहीं चल रहा इन्वेजिव प्रोसीजर्स, ये नीडल है, ये सिरिंज है, वो नहीं पता चल रहा. उनको फियर क्यों है? कि पहले जब आए थे तब कुछ हुआ था मेरे साथ बुरा. सो प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से उनको फियर और इंजरी होता है, पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से, एंड प्रिपरेशन फॉर एक्सपीरियंस.
जैसे ही आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, सो दे विल गेट अवेयर कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा होगा. वन इंसिडेंट, व्हेन माय ब्रदर वाज सो स्मॉल, उसको रेगुलरली याद है कि इम्यूनाइजेशन के लिए हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं. तो उसको पता है कि यहाँ पर जाके वो नर्स उसको इंजेक्शन डाल देती है. तो देर इज अ बैड एक्सपीरियंस इन हिज माइंड. एक बार मुझे डॉक्टर को बताना था, इसलिए हम हॉस्पिटल गए, तो उसको लेकर गए. जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुए, उसको याद आ गया कि हाँ मुझे तो यहाँ पर इंजेक्शन लेने के लिए ले जा रहे हैं. तो ही स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे नहीं आना. मुझे ही यूज्ड टू स्पीक कि इंजी, मुझे इंजी नहीं लेना, मुझे नहीं आना, ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया. हमने उसको कन्विंस किया कि डॉक्टर विल नॉट डू एनीथिंग, दीदी को इंजेक्शन लगवाना है इसीलिए हम जा रहे हैं. बट स्टिल वो मान ही नहीं रहा था. जब मुझे लेके गए अंदर, तब उसको रिलैक्स फील हुआ कि हाँ अभी मुझे नहीं लगाएंगे इंजेक्शन. तो उनको वो एक्सपीरियंस याद रहता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होगा, उनके साथ बुरा होगा. सो उसकी वजह से उनको फियर और पेन, इंजरी और पेन का फियर हो जाता है. लॉस ऑफ कंट्रोल. सो नॉर्मल उनकी जो रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो उसकी वजह से रिग्रेशन देखने को मिलता है. जो न्यू स्किल्स उन्होंने लर्न किए थे, दे विल फॉरगेट. देयर इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल. इंटरवेंशंस क्या करनी है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एनपीओ है तो आप पैसिफायर दोगे. उनके एज अप्रोप्रिएट आप उनको टॉयज और वैसा सब दे सकते हो. तो दिस आर द इंटरवेंशंस. टॉडलर है, सो पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको अप्रोच करना है. थेराप्यूटिक टच और सॉफ्टली इन्फेंट के साथ बात करनी है. देयर विल बी रिग्रेशन. तो रिग्रेसिव बिहेवियर है, सो यू हैव टू Accept. एक्सेप्ट इट. रिग्रेसिव बिहेवियर होगा, सो हम एक्सेप्ट करना है, उसको खेलना है, जो भी उसको पसंद है वो हम कर सकते हैं अप्रोप्रिएट को. टेम्पर टेंट्रम्स भी होंगे. टॉडलर है तो देयर विल बी टेम्पर टेंट्रम्स, बट मेक श्योर कि अगर वो फिजिकल टेम्पर टेंट्रम्स निकाल रहा है, सो उसको सेफ एनवायरनमेंट हो, उसको इंजरी ना हो जाए. तो ये सब हमें याद रखनी है. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ટોડલરને હોસ્પિટલાઇઝ કર્યો હોય તો હોમ જેવું જ એનું રૂટીન રાખવાનું. हाँ, जितना हो सके उसके घर के जैसा ही रूटीन रखो. जितने बजे खाता पीता है सोता है, जैसा घर पर रूटीन है उतना क्लोज हॉस्पिटल का भी रूटीन रखो. दिस इज द बेस्ट की. देन हॉस्पिटलाइज प्री स्कूलर देखा हमने. सो उसमें सेपरेशन एंजाइटी होगी, पर टॉडलर के जितनी होगी, नो. टॉडलर से थोड़ी कम होगी. देयर विल बी सेपरेशन एंजाइटी, पर टॉडलर जितनी सीवियर नहीं होगी. बट जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा, सेपरेशन एंजाइटी की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी. प्रोटेस्ट उनमें कैसा होगा? सो जो टॉडलर है, जैसे बहुत टॉडलर कैसे वर्बल अटैक करता था, बाइट कर लेता था, प्री स्कूलर ऐसा नहीं करेगा. सो इट विल बी लेस डायरेक्टिव एंड लेस अग्रेसिव कंपेयर टू द टॉडलर. और वो अपनी फीलिंग्स दूसरों पर निकालने का ट्राई करेंगे प्री स्कूलर्स. देयर विल बी डिस्पेयर. सेम प्री स्कूलर्स का और टॉडलर्स का सेम होगा. वो विड्रॉ कर लेंगे, उनमें डिप्रेस हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा. और मेन थिंग, वो अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे. आप खाना दोगे, सो दे विल टेल यू आई डोंट वांट टू ईट. आप मेडिसिन दोगे, सो दे विल टेल यू आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन. वो कॉपरेट ही नहीं करेंगे. एंड रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज दैट? हमारा પેરેન્ટ્સ. पेरेंट्स क्યારે આવશે? यस, व्हेन माय पेरेंट्स विल कम. बस एक ही क्वेश्चन उनको चाहिए. उनको मेडिसिन भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं खाना है, बस उनको कुछ करना ही है. नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग. व्हेन माय पेरेंट्स विल कम, ऐसा ही वो बिहेव करेंगे. सो देयर विल बी डिस्पेयर. डिटैचमेंट सेम टॉडलर के जैसा. नो डिटैचमेंट कैन बी पॉसिबल इन फॉर द टेम्पररी फेज. ज्यादा होगा तभी डिटैच हो सकते हैं. फियर ऑफ इंजरी एंड पेन. सो अब उनको उतनी आइडिया नहीं है. बॉडी इंटीग्रिटी की थोड़ी आइडिया कम है, बट उनको डर किसका लग रहा है अब? इंजेक्शन की बात सुन के. इन्फेंट और टॉडलर को व्हाट इज इंजेक्शन, दे डोंट नो. उनको इंजेक्शन क्या है वो नहीं पता, पर उससे जो दर्द होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उससे डर लगता है. अब इनको पता है कि व्हाट इज इंजेक्शन, तो उनको इससे डर लगना स्टार्ट हो जाएगा. इन्वेजिव प्रोसीजर का नाम सुन के डर लगेगा, डैमेज से डर लगेगा, और वो खुद से इतना वर्ड्स इमेजिन कर देंगे. होती है सुई, और सुई को बड़ा ऐसे बना के डरना स्टार्ट कर देंगे. सो दैट कुड हैपन. लॉस ऑफ कंट्रोल सेम. अगर उनका रूटीन मेंटेन नहीं होगा, सो जो भी उन्होंने सीखा है वो भूल सकते हैं. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ रिग्रेशन. और वो लोग उतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इवेंट्स को. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर
वो क्यों इवेंट्स को उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे? बिकॉज दे हैव ईगोसेंट्रिक नेचर, वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होता है। सो उन्होंने सारी सोच मतलब अपने हिसाब से ही डेवलप की है कि वो नए एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस ऐसे इमेजिन, वो उनको ऐसा लगता है कि ये बुरा है, सो मतलब बुरा है। उन्होंने उनकी मैजिकल थिंकिंग और ईगोसेंट्रिसिटी की वजह से वो इवेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इंटरवेंशंस कैसे करना है। सो आपको उसके फियर्स, एंजाइटी आइडेंटिफाई करना है, रिग्रेसिव बिहेवियर है, सो आपको एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे उसको हेल्प करनी है कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कैसे आ जाए, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना है, थोड़ा टाइम देना है कम्युनिकेशन के लिए। उसको ग्रूमिंग करवा सकते हो पेरेंट्स के साथ, उसका फेवरेट टॉय है सो वो आप दे सकते हो, मोबिलिटी, प्ले थेरापी सब आप करवा सकते हो, यू कैन अलाउ देम। और प्रोसीजर्स आप जो उसको समझ आए, जैसे समझ आए वैसे आप समझाओगे। अंडरपैंट्स अब उनको पहनने, अभी उनको ऐसा नहीं है कि वो खुला घूमेंगे या नहीं पहनेंगे तो चलेगा, उनको अभी शर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इफ दे वांट टू वियर अंडरपैंट्स यू कैन अलाउ देम। फिर हमने हॉस्पिटलाइज स्कूल एज देखा, उसमें सेपरेशन एंजाइटी कैसी होगी? सेपरेशन एंजाइटी कैसी होगी उनमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग, am I audible to you? Yes or no? Yes. Yes. हाँ, so separation anxiety स्कूल एज चाइल्ड में कैसी होगी? सेपरेशन Less एंजाइटी असर. नहीं है, बट दे आर स्ट्रेस यूज टू, हाँ वो यूज टू हो गए बिकॉज वो रेगुलर अभी स्कूल जाते हैं, सो अभी उनमें सेपरेशन एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ड्यू टू द स्ट्रेस, वो बीमार है और ऐसे टाइम पे उनको पेरेंट्स चाहिए, सो ड्यू टू द स्ट्रेस सेपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ दे वांट देयर पेरेंट्स विद देम, बट स्ट्रेस की वजह से अभी सेपरेट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। और उनमें मेन कंसर्न क्या है? स्कूल मिसिंग। स्कूल एज चाइल्ड का मेन कंसर्न Friends will forget them. सॉरी, फ्रेंड्स विल फॉरगेट देम, यस हाँ, उनको लगेगा कि फ्रेंड्स उनको भूल जाएंगे। एंड दूसरा फियर, स्कूल मिस। हाँ स्कूल मिस हो जाएगा, उनकी स्टडीज मिस हो जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी। सो उनमें मेन कंसर्न ये होता है। उनमें प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिटैचमेंट होगा? यस और नो? नो। No. नहीं होगा, दे आर नाउ मैच्योर किड्स, उसमें ऐसा भी नहीं करेंगे वो। फियर ऑफ इंजरी और पेन, उनको इलनेस, बीमारी का ही डर लगेगा, डिसेबिलिटी का, प्रोसीजर्स इन जेनिटल एरिया, ऐसा सब डर लगेगा। सेक्सुअल एग्जामिनेशन करोगे सो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। एंड आप लाइक कुछ भी प्रोसीजर करोगे सो दे विल ग्रोन एंड बीन्स डिफरेंट साउंड्स निकालेंगे, और अपने खुद को इतना स्टील बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, बिकॉज उनको लगेगा कि थोड़ा भी हिलेंगे तो दर्द होगा। सो दे विल ट्राई टू रिमेन स्टिल, इतना रिजिडली स्टिफली वो स्टिल रहेंगे और पेन के बारे में आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। लॉस ऑफ कंट्रोल, यूजुअली देयर इज नो एनी रिग्रेशन, वो हाईली सोशलाइज्ड, इंडिपेंडेंट और अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि रिग्रेशन इजीली हो जाता है, बट इफ इट हैपेंस यू हैव टू एक्सेप्ट इट। whenever there will be limitation, उनको हेल्पलेस और डिपेंडेंट फील होगा। इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? सो रूमिंग इन करवा सकते हो, उसकी एबिलिटीज और नीड्स पर फोकस करना है, उनको भी इन्वॉल्व करना है उनकी खुद की केयर में, जितना हो सके उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। चॉइसेस आप अलाउ कर सकते हो, जो भी उनको फील हो रहा है वो वर्बली नॉन वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी उनके फियर और कंसर्न्स है वो आपको सुनने हैं, जानने की कोशिश करना है। आप कुछ समझाओगे तो डायग्राम यूज करके आप समझा सकते हो। प्राइवेसी देनी है, इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं करनी है, अंडरपेंट्स पहनने हैं सो पहन सकते हैं। स्कूल एज चाइल्ड के अकॉर्डिंग, उसके डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग आपको टॉयज और एक्टिविटीज करवानी है। बट स्कूल एज चाइल्ड का मेन कंसर्न था फ्रेंड्स एंड मिसिंग द स्कूल। सो फ्रेंड से वो टच में रह सकते हैं, और जो भी एजुकेशनल नीड्स है उनकी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ उनको स्टडी करना है, कुछ भी होमवर्क करना है, सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। हॉस्पिटलाइज एडोलेसेंट, सेपरेशन एंजाइटी, उसमें क्या देखा? व्हाट वी हैव पेरेंट्स सीन? दैट ही नहीं। सॉरी हिमांशी,
પેરેન્ટ્સ માટે સેપરેશન એન્ઝાયટી નહીં હોય બટ हाँ, ફ્રેન્ડ્સ सो सेपरेशन फ्रेंड्स के लिए है, यस। उनको सेपरेशन एंजाइटी अभी पेरेंट्स के लिए नहीं है। दे आर नॉट श्योर कि उनको पेरेंट्स चाहिए उनके साथ हॉस्पिटल में कि नहीं, बट मेन कंसर्न है फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स के छूट जाने की वजह से। क्यों फ्रेंड्स की वजह से वो अपसेट है? बिकॉज उनको लगता है कि उनके बगैर ही उनके फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे। सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एंजाइटी, फियर ऑफ इंजरी एंड पेन। सो उनको किसका फियर रहता है ज्यादा कि वो दूसरों से अलग दिखेंगे, उनके पीयर ग्रुप से अलग लगेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फिर वो उनको डर लगता है, बट तो भी आपको वो क्या बोलेंगे, कैसे इंप्रेशन देंगे आपको? आई एम नॉट अफ्रेड। आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं लगता, बट स्टिल डीप डाउन तो उनको डर लग रहा होगा। और जब भी आप सेक्सुअल एग्जामिनेशन करोगे सो दे विल कम मोर गार्डेड। लॉस ऑफ कंट्रोल में समटाइम्स एडोलेसेंट अगर वो खुश नहीं है, उनको गुस्सा है, सो तो गुस्सा आपको शो करेंगे, विड्रॉल एंड अनकोऑपरेटिवनेस भी वो शो करते हैं। ऐसे बिहेवियर्स एडोलेसेंट करते हैं। अगर दे डोंट वांट टू गेट एडमिटेड और ऐसा कुछ करना हो तो ये सब बिहेव करेंगे। फिर वो आपसे हेल्प मांगेंगे समटाइम्स एंड देन दे विल रिजेक्ट इट कि आई डोंट वांट योर हेल्प, और ऐसा रूड भी बिहेव करते हैं वो लोग। इंटरवेंशंस मेनली उनको क्या इनकरेज करोगे कि अपीयरेंस रिलेटेड जो भी इलनेस है, इलनेस से आपके अपीयरेंस पर क्या अफेक्ट होगा फ्यूचर में, इलनेस की वजह से फ्यूचर में क्या होगा, सो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। मेक श्योर उतना ध्यान रखना है कि एडोलेसेंट आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स देयर अपीयरेंस, लुक्स एंड फ्रेंड्स। सो आपको उनको जो भी करना है रिलेटेड टू देयर अपीयरेंस, क्लोथ्स, वो आप अलाउ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसमें से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ना बढ़े। हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो ऐसा सब आप अलाउ कर सकते हो। अगर हेल्थ डिटेरियोरेट होने के चांसेस है सो यू कैन नॉट अलाउ इट। फिर उसको फेवरेट फूड खाना है सो वो भी खा सकता है, बट इट इज एक्सेप्टेड कि हाँ ये बीमारी में ये खा सकता है, तभी उसको अलाउ करना है, बट वी कैन अलाउ दिस। आपको प्रोसीजर्स डायग्राम्स के यूज से समझानी है। देन पीयर ग्रुप्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ वो कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है। एजुकेशनल नीड्स प्रोवाइड करनी है, बट इन टर्म्स ऑफ उनको जैसी लाइक अभी उनको स्टडीज के रिलेटेड नहीं है, बट रिलेटेड टू लाइक एसपीआईज और जैसी भी उनके नीड है वो हम उनको दे सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो आपकी क्या प्लानिंग है आपके, एंड कोपिंग पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म उनको डेवलप करने में हेल्प करनी है। एनी डाउट इन दिस? No. Oh, ma'am. न्यू स्टूडेंट दैट इज मिक्स साक्षी, डू यू हैव एनी डाउट? आपको कोई डाउट है आज के सेशन में? शी इज नॉट देयर। Yes, she is not there. Okay. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Oh, ma'am.